So yesterday I told you that evidence has to be recorded in the presence of the accused under section 273. So what will you do in a situation where the accused person has absconded, he hid himself or he ran away, because absconded includes both, and there is no immediate prospect of arresting him? So what? In this situation, if you just read section 273, you'll think that since it's a mandatory provision, you have to comply with it, so you cannot take any evidence till the accused arrives. So what will happen? Is the trial condemned to be stayed till the accused is arrested? The answer is no. And you'll get the answer to this query under section 299 of the CRPC. It says, if it's proved that the accused person has absconded and there is no immediate prospect of arresting him, the court competent to try or commit for trial such person for the offence complained of, in his absence, examine the witnesses produced on behalf of the prosecution and record their depositions, and they can be used as evidence against the accused. In a situation the deponent is dead, incapable of giving evidence, or cannot be found, or his personal presence cannot be procured without the amount of delay, expense, or inconvenience under the circumstances of the case would be unreasonable. So you have to relate this section with section 33 of the Indian Evidence Act. Alright, just keep that in mind. Just write it down for now, because evidence is not done yet, so you'll be very confused if I start talking about section 33. So I'd rather not talk about section 33 right now, but for the sake of interlinking, write section 273 right next to 299, and when you're reading section 273 CRPC, read with section 299 of the CRPC, and 299 shall be read with section 33 of the Indian Evidence Act. Subsection 2 says, if it appears that the offence punishable with death or imprisonment for life has been committed by some person or persons unknown, the High Court or the Court of Session may direct any magistrate of first class to hold an inquiry and examine witness who can give evidence concerning the offence, and any deposition so taken may be given in evidence against the person who is subsequently accused of the offence, if the deponent is dead, incapable of giving evidence, or beyond such limits. Now, there is a fundamental difference between 299 subsection 1 and subsection 2. See, subsection 2 applies only on the case where the offence is punishable with death or imprisonment for life. Alright, and the direction is given by the High Court and the Sessions Judge to the magistrate to examine any witnesses who can give evidence concerning the offence. And here, in subsection 2 situation of section 299, the court or the investigative agency does not know who the accused is. अभी तक पता नहीं चला accused कौन है. That is why it uses the expression may be given in evidence against the person who is subsequently accused of the offence. But in subsection 1 कि accused person पता है कौन है. It knows, the court knows who is the accused person, and it has to be satisfied he has absconded. तो ये बात याद रखिएगा कि सबसेक्शन 1 में अक्यूज्ड पता होता है, सबसेक्शन 2 में अक्यूज्ड नहीं पता होता, और सबसेक्शन 2 उसी सिचुएशन में अप्लाई होता है जब ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. इसमें हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्शन देते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को to hold an inquiry and examine any witnesses who can give evidence concerning the offence. और सबसेक्शन 1 में क्या होता है? सबसेक्शन 1 में कोर्ट competent to try और commit for trial. कोर्ट competent to try कोई भी कोर्ट हो सकता है जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है कि it can try. कमिटल फॉर ट्रायल कौन करता है? कमिटल फॉर ट्रायल वहाँ होता है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या एनी अदर लेट्स सपोज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसके पास केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट करता है. जब भी सीआरपीसी कमिट शब्द का यूज कर रही है, इट मीन्स दैट द केस विल बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली. जब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मान लीजिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को केस देता है ना, तो उसे कमिट नहीं कहा जाता है, उसे कहता है मेक ओवर, दे देना, ये बोला जाता है. इनफैक्ट इफ यू रेफर टू सेक्शन 325 of the CRPC जो बताता है कि where the magistrate cannot pass
a sentence sufficiently severe, तो वो कहता है कि submit his proceedings and forward the accused. Submission शब्द का यूज कर रहा है rather than committal शब्द का. Committal शब्द का सिर्फ यूज होता है कोर्ट ऑफ सेशन के कंटेक्स्ट में, जब केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को भेज रहा है. तो ये तो 325 में आप अगर जैसे ही देखेंगे ना कि मैजिस्ट्रेट को केस भेजने की बात हो रही है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को केस भेजने की बात हो रही है, तो 325 जैसे सेक्शन विल यूज द वर्ड सबमिशन ऑफ हिज प्रोसीडिंग. इट विल यूज सब, इसने 325 ने एक्चुअली वर्ड यूज किया है सबमिट हिज प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1, लेकिन सबसेक्शन 1 ऑफ 325. लेकिन सेक्शन 323 देखिए, उसमें भी कमिटल होता है. तो वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन में लिखा ही शैल कमिटेड टू द कोर्ट. 209 में भी देखिए क्या लिखा है, ही शैल कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन. तो ध्यान रखिएगा जब भी कमिटल शब्द का यूज हो रहा है, इसका मतलब कमिटल कहाँ होगा, कोर्ट ऑफ सेशन को ही होगा. ऑलराइट, सो बी वेरी श्योर ऑफ दैट. फिर वी कैन कंटिन्यू विद द मैटर्स ऑफ ट्रायल अगेन. अभी हम लोग एंटरिंग अपॉन डिफेंस पे नहीं आए थे. उससे पहले ट्रायल के बीच में एक और सिचुएशन आ सकती है, वो है एडजर्नमेंट. तो एडजर्नमेंट कब कब आ सकता है? देखिए एडजर्नमेंट का सेक्शन कौन सा है? एडजर्नमेंट का सेक्शन है 309 CRPC. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ऑलराइट, एडजर्नमेंट इज 309 ऑफ द CRPC. और 309 CRPC इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी रीजंस. In every inquiry or trial, the proceeding shall be continued day to day until all the witnesses in attendance has been examined, unless the court finds adjournment of the same beyond the following day to be necessary for the reasons to be recorded. Provided that where the inquiry or trial relates to offences relating to rape, अब पूरी लिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, 376A, A, B, B, C, etc. ये सारे हैं. Inquiry or trial shall be completed within a period of 2 months. ये 2 महीने याद रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है. और खासतौर से जो लोग थ्योरेटिकल स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि ये सेक्शन एज इट इज पूछ लिया जाएगा. यूपी, उत्तराखंड, बिहार में पूछ लिया जाएगा कि टेल अस अबाउट सेक्शन 309 या टेल अस अबाउट एडजर्नमेंट. तो ये सेक्शन के मेन की पॉइंट्स याद कर लीजिएगा. वैसे तो की पॉइंट्स आपको CRPC में जितने सेक्शंस के अभी तक मैंने आपको बताए वो आपको सारे याद करने हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ ट्रायल. लेकिन इस सेक्शन के भी की पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, ठीक है. सो इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, सबसेक्शन 2309 का पढ़ रहा हूँ. इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, अगर उसे रिमांड देनी है तो वो चाहे तो पोस्टपोन कर दे एंड बाय वारंट रिमांड द एक्यूज टू कस्टडी. लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट रिमांड दे रहा है तो एक बार में अंडर दिस सेक्शन 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है, एक बार में इन अ सिंगल ट्राई. प्रोवाइजो में ये लिखा है, प्रोवाइडेड नो मैजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 15 days एट अ टाइम. इन अ सिंगल वे, एक बार में आप 15 दिन की रिमांड नहीं दे सकते. प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ witness are in attendance and no adjournment or postponement shall be granted without examining them except for special reasons to be recorded in writing. अब देखिए जब witnesses आए हैं तब आप adjournment नहीं देंगे जब तक आपके पास special reason ना हो. and special reasons has to be actually special. बड़े खास reason होने चाहिए कि आपने क्यों नहीं examine किया, क्योंकि legislature and the courts concerned, especially the superior court, will frown upon such conduct. जो स्पेशल रीजंस है ना, जब तक आपके एडजर्नमेंट ऑर्डर में नहीं आए एंड ये नहीं बता पाए कि आपने क्यों ऐसा केस एडजर्न कर दिया, तो आपने जो CRPC का जो लॉ है सेक्शन 309 में एडजर्नमेंट का, उसका वायलेशन किया है. इफ़ यू डू नॉट गिव स्पेशल रीजंस फॉर गिविंग एडजर्नमेंट ऑन द डे वेयर ऑल द विटनेसेस आर प्रेजेंट, अटेंडेंस में हैं पर तब भी आपने बिना एग्जामिन किए एडजर्न कर दिया, देन इन दैट सिचुएशन you have not fulfilled the spirit of section 309 and to a certain extent you have violated the law that has been laid down by the Supreme Court as well, especially in the case of state of UP versus Shambhunath Singh. So before telling you about the case, I'll first finish with the nuances of the section. कि special reasons होने चाहिए जब विटनेसेस अटेंडेंस में अगर आपको एडजर्न करना है. और एडजर्नमेंट
कैन नॉट बी ग्रांटेड for the purpose only of enabling the accused to show cause against the sentence proposed to be imposed on him. तो ये पोस्ट कन्विक्शन और प्री सेंटेंस हियरिंग की बात कर रहा है, प्री सेंटेंस हियरिंग की बात कर रहा है ये, जो सेक्शन 235 में होती है. तो जब मैं जजमेंट पे आऊँगा सेशन ट्रायल के, तो मैं आपको प्री सेंटेंस हियरिंग के बारे में सब कुछ बताऊँगा, इंक्लूडिंग द टाइमलाइन ऑफ केसेस, कि पहले केस से लेके लास्ट तक उसमें क्या हुआ, जो भी मेन लॉ हेल्ड करते हैं इस पॉइंट पे. और साथ में ये भी बताऊंगा कि प्री सेंटेंस हियरिंग का वायलेशन क्यूरेबल इरेगुलरिटी है या नहीं. बट राइट नाउ कीप इन माइंड कि जो प्रोवाइजो है, यू हैव टू बी वेरी सर्टेन अबाउट इट. यू हैव टू लिंक इट विद व्हाट, सेक्शन 235 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 248 ऑफ द CRPC, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल में देता है आपका कन्विक्शन, और अगर वो कन्विक्शन देता है तो प्री सेंटेंस हियरिंग होनी ज़रूरी है. जनरली मान लीजिए जनरल रूल ये है कि प्री सेंटेंस हियरिंग इज एसेंशियल. और जब प्रोवाइजर लेजिस्लेचर ने ऐड किया है, ये बस ये एक्सप्लेन करने के लिए किया है कि आप एडजर्नमेंट सर्विस का इस कॉज पे नहीं मांग सकते कि यू वांट कि आपने प्री सेंटेंस हियरिंग होने वाली है, सो यू वांट एन एडजर्नमेंट टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस टू बी प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन यू. जो भी सेंटेंस आपके ऊपर इम्पोज होने वाला है, सिर्फ उस ग्राउंड पे आप एडजर्नमेंट नहीं मांग सकते कि आपको टाइम चाहिए अपना सेंटेंस के लिए, मैटर रिफ्लेक्ट करने के लिए, मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए. लेजिस्लेचर ये नहीं चाहता है प्री सेंटेंस हियरिंग भी एक मिनी ट्रायल हो जाए. ऑलराइट, तो प्री सेंटेंस हियरिंग पे अभी मैं आऊँगा, बट ये प्रोविजन ध्यान में रखिएगा और आप इसको समन्स ट्रायल के केस से भी रिलेट कर लीजिएगा कि जब समन्स ट्रायल में जजमेंट होता है. ठीक है, समन्स ट्रायल में जजमेंट किधर होता है? समन्स ट्रायल में जजमेंट आता है सेक्शन 255 पे. ऑलराइट, तो प्रोवाइड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड अनलेस एक्सेप्ट where the circumstances are beyond the control of the party. The fact that the pleader of the party is engaged in another court is no ground for adjournment. Where a witness is present in the court but a party or his pleader is not present, or the party or pleader is present but not ready to examine or cross-examine, the court may if it thinks fit, record the statement of the witness, pass the order as it thinks fit, dispensing with the examination in chief as or the cross-examination as the case may be. तो ये ध्यान रखिएगा. So you can resort to this situation where prosecution or the defense resort to dilatory tactics. Dilatory tactics होती हैं the tactics which the defense or the prosecution uses to cause the delay, कि ट्रायल को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं. They are trying to harass the opposite side. So in that case, you can examine the witness yourself if you see that the parties are not ready to examine in chief or cross-examine their own witnesses. Alright, so be very certain of these sections and mark the keywords कि आप ऐसे situation में क्या कर सकते हैं. आपको सेक्शन को एज इट इज रिप्रोड्यूस नहीं करना होता एग्जाम में, और ना एज इट इज याद रखना पड़ता है. आपको बस सेक्शन की स्पिरिट याद रखनी है. आपको जब सेक्शन का ऑब्जेक्ट याद रहेगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज देयर, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट. ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है कि इफ सफिशिएंट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू रेज अ सस्पिशन दैट द अक्यूज्ड मे हैव कमिटेड एन ऑफेंस and it appears likely that further evidence may be obtained by remand, this is a reasonable cause for remand. ये सब सेक्शन 2 के फर्स्ट प्रोवाइजो की बात कर रहा है, जहाँ पे रिमांड देनी होती है. और बाय द वे जो 15 दिन की लिमिट है ना एक बार में देने पे, वो मैजिस्ट्रेट पे ही है, कोर्ट ऑफ सेशंस पे नहीं है. ओनली फॉर द मैजिस्ट्रेट 15 days एट अ सिंगल टाइम इज रिक्वायर्ड, कि बार बार उसे बुला के फिर से रिमांड देनी पड़ेगी अगर दोबारा रिमांड देना चाहता है तो. बट फॉर द कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा कोई 15 दिन का पीरियड का लिमिटेशन नहीं है. अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? द टर्म्स ऑन विच द एडजर्नमेंट और द पोस्टपोनमेंट में बी ग्रांटेड इंक्लूड इन अप्रोप्रिएट केसेस पेमेंट ऑफ कॉस्ट. तो एडजर्नमेंट जो क्लेम करेंगे, ये उनके ऊपर जो कॉस्ट इम्पोज होगा वो 309 में ही हो जाएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. और 312 में भी एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस दिए जाते हैं, बट वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है. पर इसमें जो 309 में कॉस्ट ऑर्डर करता है कोर्ट, ये प्रोसिक्यूशन भरेगा या तो अक्यूज्ड भरेगा. ऑलराइट,
The state government will not bear the cost of the complainant or the witnesses for attending the court, because section 312 has its own sphere, and section 309 has the object to curb the dilatory tactics and also to speed up the trials that are languishing in the courts. ठीक है, तो एडजर्नमेंट को लेके मैं थोड़ा आपको केस लॉ बता देता हूँ. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शंभूनाथ सिंह का इसमें जजमेंट है, और इसमें कुछ लीगल प्रोपोजिशन हेल्ड की थी. पहले तो लीगल प्रोपोजिशन ये है कि कोर्ट हैज़ टू रिकॉर्ड रीजंस फ्रॉम डेविएटिंग फ्रॉम द रेगुलर कोर्स ऑफ मेकिंग ट्रायल डे टू डे, कि डे टू डे आपको ट्रायल कंटिन्यू करना है अंटिल ऑल द विटनेस इन अटेंडेंस हैज बीन एग्जामिन्ड, और if only if there are special reasons, then only you can order an adjournment where the witnesses is present in the court. कोर्ट ने इसी केस में इस कंडक्ट पे फ्राउन अपॉन किया कि द कोर्ट्स आर ग्रांटिंग एडजर्नमेंट्स एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, कि पार्टी ने मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दी, लेट अस सपोज डिफेंस ने या प्रोसिक्यूशन ने कि सर एडजर्नमेंट दे दीजिए, आज मुझे दूसरे कोर्ट जाना है, और कोर्ट ड्रॉप ऑफ द हैट पे एडजर्नमेंट दिया पड़ा है. सो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत फ्राउन अपॉन किया, एंड इट इज़ रीइटरेटेड द लॉ 2017 में भी कि द लोअर कोर्ट शुड स्टॉप डूइंग दिस. ये वायरस की तरह उसको बोला है कि द वायरस ऑफ एडजर्नमेंट हैज़ टू बी स्टॉप्ड. सो दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ फ्राउनिंग अपॉन इट अलॉट, एंड इट हैज़ इवन ऑर्डर्ड कि हाई कोर्ट्स नज़र रखे ऐसे जजेस पे जो सिर्फ एडजर्नमेंट्स ग्रांट करते हैं और उनकी ACR पे स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करे. तो ऐसे में आपका प्रमोशन हो सकता है एकदम रुक जाए अगर आप एडजर्नमेंट्स फ्रीली देते हैं. तो हाई कोर्ट्स ने इस पर कुछ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन भी डालें, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट्स इन पर्टिकुलर डालें कि ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं देंगे, और अगर रिकॉर्ड करेंगे यू हैव टू सेंड इट ओवर टू योर एडमिनिस्ट्रेटिव जज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे हर हाई कोर्ट के अपने अलग अलग रूल हैं. तो जो पोजीशन रिटरेट की गई है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि if the court finds that the day-to-day examination of the witness as mandated by the legislature cannot be complied with, then it can be either due to non-cooperation of the accused or his counsel or due to prosecution. तो ऐसे केस में क्या कर देना चाहिए कोर्ट को? कॉस्ट इम्पोज कर देने चाहिए, और वो कॉस्ट कितने होंगे? इट शुड commensurate with the loss suffered by the witnesses including the expenses to attend the court. Commensurate का मतलब ये होता है कि they should be in equality, कि मतलब उसमें बराबर से होना चाहिए, कंपैरेटिव वैल्यू के होने चाहिए कि आपका आने जाने में कितना खर्चा हुआ, आपका जो टाइम का लॉस हुआ. लेट अस सपोज यू आर एन ऑफिस गोयर, यू अर्न 4000 एन आवर, 1 घंटे में आपको 4000 आप अर्न करते हैं. तो आने जाने का खर्चा और वो जो आपका 1 घंटे का जो लॉस हुआ है, दैट हैज़ टू बी रिटर्न्ड बाय द वे ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सिर्फ आने जाने का खर्चा ही नहीं जाएगा. ऑलराइट, सो you have to be very sure that when you are ordering a cost, then it should commensurate with the loss suffered by the witness. The loss suffered by the witness will include the loss of his time and how much does he earn in that time, ये भी होगा. So you have to make sure that when you order the cost, you keep all these parameters in mind along with the expenses, daily expenses also. तो अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस RS नायक में एडजर्नमेंट को लेके क्या बोला था कि स्पीडी ट्रायल की बात की थी, और कोर्ट ने बोला था स्पीडी ट्रायल पार्ट एंड पार्सल है ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इसमें सोसाइटल इंटरेस्ट भी है और अक्यूज्ड का भी इंटरेस्ट भी है. और स्पीडी ट्रायल फ्लोज फ्रॉम वेयर? आर्टिकल 21. इट एनकम्पासेस ऑल द स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, रिवीजन एंड रीट्रायल. ये सारी सिचुएशंस पे चलता है. अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पीरियड ऑफ रिमांड एंड प्री कन्विक्शन डिटेंशन शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. अक्यूज्ड की जो वरीज, एंग्जाइटी हैं वो मिनिमल रहनी चाहिए, और जो प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल होता है उससे एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ जाती है. सो एन एफर्ट शुड बी मेड टू स्टॉप दैट. अनड्यू डिले मे कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ. ये भी सिचुएशन हो सकती है. और ये भी एट द सेम टाइम कोर्ट ने कहा कि डिले इज अ नॉन डिफेंस टैक्टिक. तो
कोर्ट्स को ये भी देखना चाहिए कि डिले जो हो रहा है किसकी तरफ से हो रहा है. सो ऑर्डिनरली जो डिले है वो अक्यूज्ड को हार्म करता है. बट इफ द अक्यूज्ड इज यूजिंग डिले एज अ डिफेंस टैक्टिक, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को हार्म कर सकता है, जहाँ पे अक्यूज्ड को पता है कि उसने क्राइम किया है. और ऐसे केस में तो चाहेगा कि केस जितना चाहे उतना डिले हो जाए. तो जो वो डिले करने की कोशिश करेगा, तो ये कोर्ट को देखना है कि यहाँ पे जो डिले हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है. दैट हैज टू बी अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी फॉर द कोर्ट. और ये आपके इसी से पता चल जाएगा कौन सबसे ज़्यादा एडजर्नमेंट एट द ड्रॉप ऑफ द हैट मांग रहा है. डिफेंस बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट मांग रहा है ट्रिवियल ग्राउंड्स पे, आप समझ जाइए कौन डिले कर रहा है. अक्यूज डिले कर रहा है. प्रोसिक्यूशन बहुत ट्रिवियल ग्राउंड्स पे डिले मांग रहा है, तो आप समझ जाइए कौन डिले कर रहा है. द बर्डन, और ये बात का ध्यान रखना चाहिए, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन. डिले ordinarily in practical scenarios prejudices prosecution. Non-availability of witnesses, disappearance of evidence by the lapse of time really works against the interests of the prosecution. Of course, there may be cases where the prosecution for whatever reason also delays the proceeding. Therefore, in every case where the right to speedy trial is alleged to have been infringed, the first question is to be asked is who is responsible for delay. Alright. और देखिए, और इसमें गाइडलाइंस में स्पीडी ट्रायल को लेके और बात की गई थी, पर एडजर्नमेंट्स को लेके ये सारी चीज़ें रेलेवेंट इसलिए हैं क्योंकि एडजर्नमेंट का इशू डायरेक्टली रिलेट्स टू स्पीडी ट्रायल एंड अगेन इट रिलेट्स टू आर्टिकल 21. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आर्टिकल 21 इज विद फुल स्विंग, लाइक विद एनी अदर प्रोसीजरल लॉ. द प्रोसीजर हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल अंडर आर्टिकल 21. सिर्फ नॉट एनी अदर प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं चलेगा. Refer Menka Gandhi versus Union of India for that. 7th point AR अंतुले में ये बोला गया था जो इम्पोर्टेंट है कि डिमांड रूल को हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे. अच्छा, व्हाट इज डिमांड रूल? डिमांड रूल ये होता है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल आपको क्लेम करना पड़ेगा तभी आपको राइट मिलेगा, वरना नहीं है. क्योंकि जनरल रूल क्या है? राइट्स हैव टू बी इन्फोर्स्ड. एक मैक्सिम है, डोरमेंटिवस नो विजिलेंटिबस नॉर डोमेंटिबस जूरा सब्सिविएंट. इसका मतलब है कि लॉ उसकी मदद करता है जो अपने राइट्स को लेके विजिलेंट है, उनकी नहीं जो अपने राइट्स पे सोते रहते हैं, उनकी मदद नहीं करता लॉ. तो कोर्ट ने बोला कि हम डिमांड रूल को नहीं अफेक्ट करेंगे. ये ऑर्डिनरली कोर्ट्स की ड्यूटी है कि स्पीडी ट्रायल वो इन्फोर्स करें, उसके लिए डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So, Supreme Court in this case also said we cannot recognize or give effect to what is called the demand rule. The accused cannot try himself. He is tried by the court at the behest of the prosecution. Hence, an accused plea of denial of speedy trial cannot be defeated by saying that the accused at no point demanded a speedy trial. If in a given case he did make a such demand and yet he was not tried speedily, it would be a plus point in his favor, but mere non-asking for a speedy trial cannot be put against the accused. तो डिमांड रूल को ज़्यादा वेटेज कोर्ट ने नहीं दिया. कोर्ट ने बोला तो स्पीडी ट्रायल तो जनरली होना ही चाहिए, क्योंकि स्पीडी ट्रायल तो सबके बेनिफिट में है, प्रोसिक्यूशन के भी बेनिफिट में, क्योंकि ऐसे आपके विटनेसेस एकदम प्राइम मेमोरी में रहेंगे, एविडेंस प्राइम कैपेसिटी में रहेगा. जितना डिले होता जाता है उतने ही विटनेसेस की मेमोरी और डिपोजिशन वीक होते जाते हैं, एविडेंस भी डेप्रिसिएट होता जाता है. और अक्यूज्ड अगर इनोसेंट है तो उसको तो डिले बहुत हार्म करता है, क्योंकि वो साल दर साल हमेशा ट्रायल झेल रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, वो डरा हुआ है. सो एंजाइटी और जो मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो आता है आफ्टर विथस्टैंडिंग अ क्रिमिनल प्रोसेस, दैट इज़ वेरी ह्यूज फॉर एन इनोसेंट पर्सन. तो सोसाइटी के भी इंटरेस्ट में और अक्यूज्ड के भी इंटरेस्ट में स्पीडी ट्रायल इज़ वेरी एसेंशियल. तो इसीलिए स्पीडी ट्रायल को मैंने एडजर्नमेंट को रिलेट करके बात की. पर कोर्ट ने ध्यान रखें, कोई टाइम लिमिट फिक्स करने की कोशिश नहीं की. कोर्ट ने इसमें बोला कि इट इज़ नाइदर एडवाइजेबल नॉर प्रैक्टिकेबल टू फिक्स एनी टाइम लिमिट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस. एनी सच रूल इज बाउंड टू बी अ क्वालिफाइड रूल. Such rule cannot also be evolved merely to shift the burden of proving justification on the shoulders of prosecution. Basically, speedy trial कितना जल्दी किसी केस में होना चाहिए वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में पता चलेगा.
और आपको स्पीडी ट्रायल कहाँ क्लेम करना है? हाई कोर्ट जनरली. ऑलराइट, in exceptional situations you can also go to the Supreme Court because the right actually flows from Article 21. अब कुछ और इस पे गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की. राजदेव शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पे हैं. 8 अक्टूबर 1998 को ये डिसाइड हुआ था. इसमें बोला था, इन द केस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 years, जो 7 साल तक या उससे कम का है और अक्यूज जेल में है या नहीं, तो कोर्ट शैल क्लोज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड ऑन द चार्जेस फ्रेम्ड. जब से उसने चार्ज पे, आपको याद होगा, चार्जेस पे पूछता है कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, तो उस प्ली से लेके चार्ज फ्रेम होने के बाद अक्यूज की जो प्ली जो भी रिकॉर्ड हुई है, गिल्टी या नॉन गिल्टी की, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, तो उस केस में अगर ऑफेंस 7 साल या उससे कम से पनिशेबल है, 2 साल के अंदर ही प्रोसिक्यूशन का केस, इट हैज़ टू क्लोज विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस. ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन की ही सुनवाई चल रही है फॉर द फर्स्ट 3-4 years और फिर नेक्स्ट 3-4 year डिफेंस की चलेगी, 10 साल ट्रायल चल गया. यू कैन नॉट हैव दिस सिचुएशन. तो कोर्ट ने इस पे कुछ लिमिट्स फिक्स की हैं और बोला है कि on completion of the period of 2 years from the date of recording the plea of the accused on the charges framed, whether the prosecution has examined all the witnesses or not within the set period, and court can proceed to the next step as provided by law. तो कोर्ट ने बोला है कि 7 साल से कम का है, आप क्लोज कर दीजिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस, भले ही प्रोसिक्यूशन ने सारे विटनेस को एग्जामिन किया हो या ना किया हो. दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि if the accused has been in jail for a period not less than 1/2 of the maximum period of punishment as prescribed for the offence, the trial court shall release the accused on bail forthwith on such condition as it deems fit. If the offence is under trial is punishable with imprisonment for a period exceeding 7 years, whether the accused is in jail or not, court shall close the prosecution evidence on the completion of 3 years from the date of recording the plea of the accused on the charge framed, whether the prosecution has examined all the witnesses or not. तो 7 साल से ऊपर के केसेस में 3 साल की लिमिट लगा दी है, लेकिन इस लिमिट को एनहांस भी किया जा सकता है फॉर वेरी एक्सेप्शनल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग and in the interest of justice as the court considers necessary to grant further time to the prosecution to adduce evidence beyond the aforesaid time limit. But if the inability for completing the prosecution within the aforesaid period is attributable to the conduct of the accused in protracting the trial, no court is obliged to close the prosecution evidence within the aforesaid period in any cases covered by the clauses. So remember these guidelines. ये guidelines बहुत important हैं और इसमें अगर सुपीरियर कोर्ट भी अगर मान लीजिए स्टे लगा दे, तो जो पीरियड जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है 7 साल से ऊपर वाले केसेस में ऑर्डिनरली 3 साल का फॉर द क्लोजर ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस और 7 साल से कम वाले केस में 2 साल का, ये पीरियड जो है ये डिपेंड करेगा फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में और ये भी देखा जाएगा कि डिले किसकी वजह से हुआ है. तो ये गाइडलाइंस बहुत याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल दैट जनरली हैव नो क्लू अबाउट दीज गाइडलाइंस. तो अगर आप डिफेंस के साइड से आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप बस इसी बात को देख के ट्रायल को रुकवा सकते हैं अगर आपने देख लिया कि प्रोसिक्यूशन इतने सालों से चल रहा है. वर्स डिले शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेबल बाय द डिफेंस. इट शुड बी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू डिफेंस एट ऑल. अगर आपको एट्रीब्यूट हो गई तो ऐसे केस में तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट. बट इन द केस, let us suppose prosecution is using dilatory tactics, then in that situation you can of course take the benefit of this judgment. Or if you are a judge, then in this situation you have to be very aware of these provisions क्योंकि इसका mandatory following is a binding upon you. Because why? The law declared by the Supreme Court is binding on all courts. Article 141 of the Constitution. Remember that. So एक केस मैंने आपके लिए बाय द वे ऑफ इलस्ट्रेशन रखा है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बद्री यादव. इसमें तो कोर्ट फ्राउंड अपॉन डे टू डे एडजर्नमेंट्स, वो तो ठीक है, बट इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी. द विटनेसेस जो थे आफ्टर द लैप्स ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेसेस आए
थोड़े टाइम के बाद वो हॉस्टाइल हो गए और डिफेंस की तरफ से आ गए, और फिर एंड में उनको पर्जरी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया। तो उन्होंने प्ली ली कि उनको पुलिस ने ट्यूटर किया था, पुलिस ने धमकाया था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको फंसा देंगे। कोर्ट ने बोला नहीं, आपने कोर्ट में आके झूठ बोला, यू आर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर पर्जरी। So they were prosecuted for perjury and were found to be liable accordingly under section 193 of the Indian Penal Code. तो ध्यान रखिए, कोर्ट में कभी भी झूठ बोला, चाहे किसी के भी कहने पे बोला, then you are liable for that. Now we can read the rest of the provisions. Entering upon defense कल हो गया था, arguments की बात है। तो arguments पे क्या होगा? अब arguments पे when the examination of the witnesses for the defense is complete, prosecutor अपना केस sum up कर देगा, and accused और उसका pleader shall be entitled to reply जो भी अपने केस को sum up करे, provided when any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may with the permission of the judge make submissions with regard to such points of law. अच्छा, 234 ये नहीं बताता है arguments कहाँ पे होते हैं, पर ये आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे ये तो स्टेज बता रहा है 234 की आर्ग्यूमेंट की स्टेज कब आएगी, आफ्टर योर डिफेंस एविडेंस इज कंप्लीट, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है। पर आर्ग्यूमेंट्स की क्या गाइडलाइंस है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे कंडक्ट होंगे, ये आपको सेक्शन 314 बताता है सीआरपीसी का। तो यू रिलेट दिस विद सेक्शन 314 ऑफ द सीआरपीसी, जो कहता है ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग में एज सून एज मे बी आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस, अपना एविडेंस क्लोज होने के बाद address concise oral arguments and may before he concludes oral arguments if any submits a memorandum to the court setting forth concisely under distinct headings the arguments in support of his case, and every such memorandum shall form the part of the record. तो इसमें keywords क्या हैं, any party to the proceeding, after the close of evidence, address concise oral arguments. तो ये दो स्टेजेस पे ओवरलैप कर सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? द फर्स्ट स्टेज इज आफ्टर दे हैव गिवन एविडेंस, जैसे प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस क्लोज कर दिया तो ही इज अलाउड टू मेक हिज सबमिशंस, तभी 232 में देखेंगे अंडर सेक्शन 232 which is the stage after the evidence of prosecution is taken, the prosecution again makes a submission और कोर्ट एक हियरिंग प्रोसिक्यूशन की भी कंडक्ट करवाता है और डिफेंस की भी कंडक्ट करवाता है ऑन दिस पॉइंट, सो ही कैन एक्चुअली मेक कंसाइज ओरल आर्ग्यूमेंट्स इवन आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस। और डिफेंस जब उसका एविडेंस खत्म हो जाता है, जब विटनेसेस आ जाते हैं, विटनेसेस एग्जामिन हो जाते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री या मटेरियल एविडेंस जो उसे प्रेजेंट करना था वो सारी चीज करवा चुका है, तो फिर वो एक ओरल आर्ग्यूमेंट्स करता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। हो सकता है बताए इस केस में इंटरप्रिटेशन कैसे होना है, या प्रोसिक्यूशन का केस एकदम वीक है, एसेट्रा एसेट्रा, दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड दे हैव टू बी मेड अकॉर्डिंगली। सबसेक्शन 2 314 का कहता है, अ कॉपी ऑफ एवरी सच मेमोरेंडम शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश्ड टू द ऑपोजिट पार्टी। पर्पस ये है ना कि आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टी के बीच होगा, एक पार्टी कुछ आर्ग्यू करेगी तो ऑपोजिट साइड हैज टू रिबट इट, उसका आर्ग्यूमेंट रिबट करना है। दैट इज व्हाई अ मेमोरेंडम, उसको शॉर्ट में करके मेमोरी समरी उसको भेजी जाती है। नो एडजर्नमेंट और प्रोसीडिंग शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स अनलेस फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसिडर्ड नेसेसरी टू ग्रांट सच एडजर्नमेंट्स। तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी जनरली एडजर्नमेंट नहीं दिया जा सकता अनलेस कोर्ट डीम्स इट नेसेसरी। And the court may, if it's of the opinion that the oral arguments are not concise, relevant or regulate such argument. ये बहुत ही हेल्दी प्रोविजन है कि इसी प्रोविजन का फायदा उठाने के लिए कोर्ट्स जो पार्टीज हैं वो ट्रायल में डायलेटरी टैक्टिक्स यूज करने लगी कि प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूमेंट कंडक्ट ही किया जा रहा है, हर हियरिंग पे उसका आर्ग्यूमेंट ही चल रहा है। सो अगर कोर्ट को लगता है कि इररेलेवेंट है, कोर्ट चाहे तो उसको कंसाइज करवा दे, टाइम लिमिट उस पर फिक्स करवा दे बाय रेगुलेटिंग इट, और अगर वो इररेलेवेंट मैटर्स बाय द वे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रेज कर रहा है देन कोर्ट में स्टॉप हिम। ऑलराइट, सो दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। मान लीजिए कि थ्रू आउट द प्रोसीडिंग उसने
फैक्चुअल मैटर पे वो आर्ग्यू कर रहा था, पर अचानक एक दिन वो आके सीधे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सीआरपीसी पे ही सवाल उठाने लगता है सेशंस कोर्ट के बीच. सो कोर्ट कहेगा दैट इज नॉट रेलेवेंट बिफोर मी, you cannot argue that before me, you have to argue that before the high court. So be confined to the matters of the fact of the case, and whatever the law that has been laid down by the Supreme Court for the interpretation of the sections applicable in the case, only for that you may argue, or you may argue for the fact of the case. Apart from that, do not raise any irrelevant grounds. All right, so आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी, ये किन किन स्टेजेस पे आ सकता है. So you have to relate arguments with what 314 as well. तो ध्यान रखिएगा 231 के बाद 313B का एग्जामिनेशन होता है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, और यू विल रिलेट 234 विद 314. और 234 में कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ? द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस, जनरली अपना केस सम अप करेगा, एंड द अक्यूज्ड उस पे रिप्लाई करेगा. आपको सिर्फ दो कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है. प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिफेंस विटनेस ऑफ द डिफेंस एविडेंस. जब डिफेंस ने अपना पूरा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस खत्म कर लिया है, तो प्रोसिक्यूशन शैल सम अप हिज केस. दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. और प्लीडर क्या करेगा? उसके समिंग अप पे रिप्लाई करेगा. हिल रिप्लाई, ही विल ट्राई टू एक्चुअली रिबट द आर्ग्यूमेंट proposed by the prosecution, और जो भी केस उसने बिल्डअप किया है उसको रिबट करने की कोशिश करेगा. Alright, provided where any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submission with regard to point of law. Point of law क्या हो सकता है? Point of law basically ये हो सकता है कि मान लीजिए जज ने एक ऐसा एविडेंस एडमिट कर लिया है जो उसे एडमिट नहीं करना था. There was an express bar by the statute. So the plea of admissibility of the evidence is the plea of law. ये law की बात है. देखिए ये वैसे है again evidence का topic कि what is a plea of law, what is a plea of fact, पर आपको बहुत general sense में बता देता हूँ. When you go to a shop to eat and I am the manager, let us suppose, of that shop, and it is a sweet shop. You arrive at that shop and you, let us suppose, bought a sweet and you ate it there, then and there only. So, and the day at which you ate that sweet was, let us suppose, Tuesday, 12th October 2019. Alright. So, whether I saw you on the date of 12th October 2019 on that sweet shop eating that particular sweet is a question of fact. ये fact का सवाल है कि हुआ था या नहीं हुआ था. But whether my such deposition is admissible in the court of law is a question of law. All right. ये कभी कभी mixed question of fact and law भी आ जाता है. So I don't want to go into it, वरना आप confused हो जाएंगे. So but basically know this proviso is confined to points of law only, not to the points of fact. Points of fact तो आपके सारे examination of witness में ही deal with हो जाते हैं. उसके लिए point of law की क्या वहाँ पे क्या बताने की ज़रूरत है. जो examination जो trial courts में होता है, which are primarily the courts of fact, तो उसके cases में it is assumed that all the matters which are relating to the factual narration have been already been dealt with when the prosecution was examining his witness and the defense was examining his witness and the cross examination by the opposite parties in either of the cases. But the point of law, it could be anything. ये तो मैंने आपको out of millions situation एक illustration दे दिया, but there can be many situations. So remember that the proviso under 234 is confined to the point of law only. तो point of law बस आपको याद करना है कि जो proviso is confined to the point of law, और जिस पे अगर मान लीजिए डिफेंस ने कोई point of law छेड़ दिया है तो ऐसे केस में prosecution जो है he'll again be entitled to reply on that. मान लीजिए वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने मना किया है, डिफेंस बोले कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में मना किया गया है कि द जज कैन नॉट कंसिडर दिस एविडेंस, और तब भी आपने एडमिट कर लिया है, सो इट इज़ नॉट अलाउेबल एंड यू आर प्रोसीडिंग ऑन द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. मान लीजिए उसने जजमेंट सबमिट किया,
तो प्रोसिक्यूटर ये कह सकता है कि डिफेंस जो एविडेंस दिखा, लेट अस सपोज हमारे इलस्ट्रेशन के लिए कि प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि जो डिफेंस ये जो एविडेंस दिखा रहे हैं, इट इज एक्चुअली एन ओवररूल्ड जजमेंट, वो जजमेंट ओवररूल हो चुका है by the five bench strength of the Supreme Court in a particular judgment. Let's suppose Mr. X versus Mr. Y. ऐसा कोई भी जजमेंट इमेजिन कर लीजिए, वो कहते हैं ओवररूल है एंड द जज हैज राइटली कंसिडर्ड दैट एविडेंस. ऐसे सिचुएशन आ सकती है. तो ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस का मैटर है. एट फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट द लॉ इज, देन यू कैन अप्लाई लॉ टू द फैक्ट्स. ठीक है. सो दिस हैज बीन डन. अब थोड़े बहुत मैटर्स और देख लीजिए. अब इसमें एक और चीज आ जाती है. अब कभी कभी ये हो सकता है कि ट्रायल के बीच में, अब आपने ये तो देख लिया कि प्रोसिक्यूशन जो है अपने विटनेस बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है जो उसका केस सपोर्ट करे. डिफेंस अपने विटनेसेस को बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है जो उसका केस सपोर्ट करे. बट बेसिकली ये दो राइवल वर्जन्स हैं जो ये अपने वर्जन्स को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ अ जज? टू फाइंड आउट द ट्रुथ, टू स्टैंड फॉर जस्टिस एंड राइटियसनेस. तो ऐसे केस में लेजिस्लेचर ने उसको भी पावर बेस्टो किए अंडर सेक्शन 311 ऑफ द CRPC, जहां पे इट इज द कोर्ट्स पावर टू summon material witnesses or examine a person present. Any court, and you will read this with section 165 of the Indian Evidence Act, any court may at any stage of inquiry, trial or other proceeding under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness, or recall or re-examine any person already examined, and court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if its evidence appears to be essential to the just decision of the case. ऐसे witnesses को कहा जाता है court witness. तो कोर्ट चाहे तो उनको रिकॉल करके री-एग्जामिन कर ले, या फर्स्ट टाइम बुलाए, या किसी ऐसे पर्सन को भी एग्जामिन कर ले जिसको विटनेस की तरह नहीं बुलाया है, बट द कोर्ट डिजायर्स कि इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए. ऑलराइट. तो इसको लेके गाइडलाइंस थी. जनरली क्या बोला जाता है कि कोर्ट शुड नॉट फिल द लैक्यूना इन द प्रोसिक्यूशन केस. लैक्यूना का मतलब होता है कि इफ देयर आर सम होल्स इन द प्रोसिक्यूशन केस and general presumption is in the favor of the accused that the accused is innocent until proven guilty, and if there is a lacuna in the prosecution's case, then in that situation in all probability accused is going to be acquitted. क्योंकि अगर prosecution case में lacuna है, so in that situation the prosecution will not be able to prove beyond reasonable doubt that the accused is guilty. वो prove ही नहीं कर पाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोर्ट 311 का यूज करता है टू कॉल कोर्ट विटनेस, बिकॉज कोर्ट का काम है टू गो इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन. इस सेक्शन को बहुत लिबरली यूज करना चाहिए जजेस को, वेयर एवर दे थिंक इट इज एसेंशियल फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस. ये पावर यूज होगी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस. ठीक है, एक्स डेबिटो जस्टिशिये. तो जो डिफेंस है वो अक्सर एक ऑब्जेक्शन लेता है. वो कहता है कि the court is trying to fill up the lacuna of the prosecution case and it should not be allowed. वो हर बार ये ग्राउंड लेता है. इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि the court is exercising section 311 for the ends of justice, and this objection that the court is trying to fill the lacuna in the prosecution case is not very meritorious. ये बड़ा meritorious argument नहीं है. अगर जिस भी विटनेस को समन किया है वो देखा उसकी टेस्टिमनी रिलायबल नहीं है, तो इट कैन ऑलवेज बी रिजेक्टेड. बट व्हाई द अक्यूज्ड इज ऑब्जेक्टिंग टू इट? अक्यूज्ड उसको ऑब्जेक्ट क्यों करने की कोशिश कर रहा है? इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग सस्पिशियस. तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला ये बहुत ही मेरिटोरियस ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको जनरली कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस अ सीरियस केस ऑफ प्रेजुडिस कैन बी शोन. और
एक और कंटेंशन जो देते हैं कि अगर आपने किसी ऐसे विटनेस को समन किया है जो ऑलरेडी समन हो चुका है, तो 311 में कौन सी स्टेज कहलाएगी, वो रीसमनिंग ऑफ एनी विटनेस। तो अगर आपने एक बार उसको समन कर लिया 311 में, तो आप दोबारा नहीं समन कर सकते, आप बार बार नहीं समन कर सकते। मान लीजिए ये ऑब्जेक्शन डिफेंस ने बोला, तो कोर्ट ने सीधे बोल दिया दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी मेरिटोरियस फॉर अ जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। द कोर्ट में समन as many times a witness as it considers reasonable, because discovery of truth is essential purpose of any trial or inquiry, and this duty is given to the court, to the trial courts primarily by the legislature. तो ये उनकी ड्यूटी है, it is the general duty of the judicial system for discovery, vindication and establishment of truth. They are the main purpose for the existence of the court. तो कोर्ट ने बोला है कि 311 के प्रोविजन को आप स्क्रूपलसली ऑब्जर्व करेंगे और इस पे कोई पेटी ऑब्जेक्शन लाइक ट्राइंग टू फिल द लाइक यू नो इन द प्रोसिक्यूशन केस, या दूसरा ऑब्जेक्शन कि वंस यू हैव समन्ड अ विटनेस यू कैन नॉट रीसमन हिम, ये यूज करने के लिए क्या कहते हैं प्रोहिबिशन नहीं है। दीज ऑब्जेक्शंस आर नॉट मेरिटोरियस एंड द जजमेंट ऑन दिस पॉइंट इज राजेंद्र प्रसाद वर्सेस narcotic cell. It was reported in the case, it was reported in the year 1999, 6th volume of Supreme Court cases. Observe that I am using the word reported, not decided. Whenever I am using SSC volume or AIR volume, then I use the word reported. But when I am actually quoting the date, let us suppose 18 October 2010, etc., then I am using the date on which the judgment has been decided. All right. So whenever you are using AIR or SEC citations, you will always use the word reported, not decided. You only use the word decided when you have the date on which it is actually decided. All right. So I provided you with the case law on this point along with the reasoning that you have to keep in mind. जितने भी केस लॉ प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैं आपको रीजनिंग भी बताता हूँ कि क्या रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट की. once you know the reasoning on the basis of which the judgment has been established, things becomes very easy for you. आपके लिए CRPC और प्रोविजंस को समझना बड़ा आसान हो जाता है. ये रीजनिंग को आपको एक बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप उसका एक बुलेट पॉइंट बना लीजिए, एक लाइन का पॉइंट बन जाएगा. तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि दिस पॉइंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग. वो आपको रीजनिंग बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट. और वो पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रीजनिंग समझ में आएगी. दैट इज वाई आई ऑल्सो इंक्लूड द रीजनिंग. अब कुछ गाइडलाइंस है फॉर एक्सरसाइज ऑफ 311 ऑफ द CRPC. तो ये गाइडलाइंस क्या है कि whether the पहले तो कोर्ट कंसिडर करेगा whether the court is right in thinking that the new evidence is needed by it. तो पहली चीज ये सोचेगा कि क्या मुझे नए एविडेंस की जरूरत है, क्या कुछ सर्व होगा ऐसे विटनेस को बुलाने से, और whether the evidence sought to be led under section 311 is essential for the just decision of the case. So बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आप हमेशा इंक्लूड करना मत भूलिएगा. It should be essential for the just decision of the case, and the discretion under 311 should be exercised for the ends of justice. The exercise of the widest discretionary power under section 311 of the CRPC should ensure that the judgment should not be rendered on incoherent, inconclusive and speculative presentation of facts, as thereby the ends of justice will be defeated. तो speculation के basis पे आपको 311 नहीं exercise करना है. You have to be वेरी श्योर कि वाई यू आर एक्सरसाइजिंग इट. क्योंकि देखिए जितना वाइड डिस्क्रिप्शन होता है, जितनी वाइड पावर होती है, उतना ही रीजनेबल एक्सरसाइज उसकी होनी चाहिए. ऑल राइट. द जजेस ऑट टू एक्ट रीजनेबली इन अकॉर्डेंस विद देयर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन. इफ एविडेंस ऑफ एनी विटनेस अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी एसेंशियल फॉर द जज डिसीजन ऑफ द केस, it is the power of the court to summon and examine or recall and re-examine any such person. ये जो court witness है ना, इतना prosecution के होते हैं ना defense के होते हैं. These are court witnesses. Court witnesses आप हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ summon किए जाते हैं. 311. The moment you know the section that a witness has been called by the virtue of section 311, they are the court witnesses. All right.
Then the next point is the exercise of the power under section 311 should be resorted only with the object of finding of the truth or obtaining proper proof of such facts that will lead to just decision of the case. Exercise of the such power cannot be dubbed as filling lacuna in the prosecution case unless the circumstances of the case make it apparent that the exercise of the power by the court would result in serious prejudice to the accused. Wide discretion of the power should be exercised judicially and not arbitrarily. The court must satisfy itself that in every respect it is essential to examine such witness or recall him for further examination in order to arrive at a just decision of the case. The object of section 311 CRPC simultaneously imposes a duty on the court to determine the truth and render a just decision. Court arrives at the conclusion that the additional evidence is necessary, not because it would be impossible to pronounce the judgment without it, but because there would be a failure of justice without such evidence being considered. तो जो कोर्ट है वो एडिशनल एविडेंस को 311 में तब रिजॉर्ट कर सकता है by the virtue of 311 it can resort to acquiring additional evidence not because it is impossible to pronounce the judgment. ये नहीं कि जजमेंट नहीं हो सकता उसके बिना without resorting to section 311, but it is essential for the just decision of the case. तो जस्टिस के पर्पस के लिए अगर इसे लगता है कि इसको 311 एक्सरसाइज करना चाहिए तो वो करेगा. अब मान लीजिए कि अक्यूज कुछ सच छुपा रहा है, प्रोसिक्यूशन कुछ सच छुपा रहा है. अब ऐसे में ऐसे कई विटनेसेस हैं जिसको दोनों पार्टी ने एग्जामिन नहीं किया, तो कोर्ट कैन ऑलवेज resort to section 311 and summon those persons and find out what is the actual truth of the matter. ठीक है. Exigency of the situation, fair play and good sense should be the safeguard while exercising the discretion. Court should bear in mind that no party in the trial can be foreclosed from correcting errors, and that if proper evidence was not adduced or a relevant material was not brought on record due to any inadvertence, the court should be magnanimous in permitting such mistakes to be rectified. Inadvertence का मतलब होता है आप भूल गए, you do not remember. The court should be magnanimous, मतलब बहुत merciful होना चाहिए in permitting such mistakes to be rectified. The court should be conscious of the position that after all the trial is basically for the prisoners, and court should afford an opportunity to them in the fairest manner possible. In the parity of the reasoning, it would be safe to err in the favor of the accused, getting an opportunity rather than protecting the prosecution against the possible prejudice at the cost of the accused. तो कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको डाउट हो जाए कि आपकी जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है आइदर साइड को प्रेजुडिस कर सकती है, तो आप बेसिकली प्रेफर करिए कि प्रोसिक्यूशन को आप प्रेजुडिस कर दें, ना कि अक्यूज्ड को, अज्यूमिंग द स्केल्स आर बैलेंस्ड. कोर्ट ने बोला है क्यों ऐसा किया है, बिकॉज innocent until proven guilty का presumption होता है, और दूसरा क्या है क्रिमिनल ट्रायल का presumption that the evidence has to be proven beyond reasonable doubt, और तीसरा क्या है सबसे important cardinal rule of criminal trial कि if in a case of doubt it is better to acquit than convict. तो इसीलिए क्योंकि ये सारी डॉक्ट्रिन जो है प्राइमरली अक्यूज्ड के फेवर में है, तो कोर्ट ने उसी को ध्यान में रखते हुए बोल दिया कि आपको अगर अर्र ही करना है तो आप फेवर ऑफ द अक्यूज्ड में अर्न करें, अर्र करें, सो दैट अर्र मतलब गलती, सो दैट फेटल प्रेजुडिस ना हो जाए अक्यूज्ड को, बिकॉज we cannot under any situation allow an innocent man to be convicted even though 10 guilty may escape. Additional evidence must not be received as a disguise or change the nature of the case against the party. The additional evidence ऐसे नेचर का नहीं होना चाहिए जो केस का ही नेचर ही बदल डाले. कि मान लीजिए केस एक ऑफेंस का है, मान लीजिए केस हर्ट का है, एविडेंस रॉबरी का मंगा रहे हैं, तो केस का नेचर बदल जाता है. फंडामेंटल नेचर जो भी केस का है इट ट्रांसफॉर्म्स. सो ऐसा एडिशनल एविडेंस 311 में नहीं समन करना चाहिए. इट कुड ऑल्सो बी अ केस ऑफ सीरियस प्रेजुडिस. हर्ट के केस में आप रॉबरी ट्राई करने लगे by the virtue of summoning procedure under section 311. You cannot do that. और ये ex debito justitia for valid reason exercise करनी चाहिए. These were the some principles. Now
वैसे तो 319 का भी एक इशू है, पर 319 को डील करने से पहले आई इमीडिएटली गेट टू द जजमेंट, और जजमेंट के बाद आई विल टेल यू अबाउट द प्री ट्रायल प्रोसीजर, प्री ट्रायल हियरिंग, प्री सेंटेंस हियरिंग, सॉरी। प्री सेंटेंस हियरिंग आपकी होती है कन्विक्शन के बाद, कन्विक्शन के बाद और सेंटेंस देने से पहले। देखिए, कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को दोषी करार देना, सेंटेंस का मतलब होता है किसी को सजा देना, एक्चुअली पनिशिंग द पर्सन। ऑलराइट, सो 235 में वापस आते हैं। अब तक आपको पता चल गया क्या क्या स्टेजेस हैं। चार्ज फ्रेम के बाद पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, और 229 में अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो ही कैन बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229। अगर नहीं प्लीड करता है गिल्टी, he claims to be tried, या अगर प्लीड करता भी और कोर्ट कंसिडर्स टू ट्राई हिम, considers him fit to be tried, तो ऐसे केस में he shall decide the date of the prosecution evidence, और आफ्टर द आप जब डेट डिसाइड कर ले तो फिर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखे, क्रॉस एग्जामिनेशन परमिट करे। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, 313B की आती है। फिर देयर कैन बी एन आर्ग्यूमेंट बाय द प्रोसिक्यूशन इफ ही वांट्स टू। उसके बाद अक्विटल की स्टेज आ सकती है सेशंस ट्रायल में, अगर केस में कोई एविडेंस ही नहीं है। अगर मान लीजिए क्विट नहीं किया 232 में, तो एंटरिंग अपॉन डिफेंस आएगा, फिर डिफेंस अपना एविडेंस देगा, प्रोसिक्यूशन उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। फिर क्या स्टेज आएगी, आर्ग्यूमेंट्स की, दोनों पार्टी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करेंगे, ऑफ कोर्स ओरल आर्ग्यूमेंट भी होगा 314 वाला। फिर स्टेज आती है जजमेंट की, जजमेंट ऑफ अक्विटल और कन्विक्शन। अब 311 कोर्ट में रिजॉर्ट इन दिस ट्रायल और नॉट, वो हो सकता है करे या ना करे। एडजमेंट की स्टेज हो सकता है हो या ना हो, प्रैक्टिकली होती है वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैंडेटरी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे आप जब भी 309 या 311 मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं तो लगाएंगे, तो आप लिखेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज इन द फैक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं, पर 313B तो आएगा ही आएगा आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, और 314 भी होगा, ओरल आर्ग्यूमेंट्स तो होने ही होने। तो फिर जब जजमेंट आता है तो 235 आप कौन से सेक्शन के साथ पढ़ेंगे, 235 यू विल रीड विद सेक्शन 253 एंड 254 ऑफ द CRPC, जो बताता है कि जजमेंट कैसे लिखा जाएगा और जजमेंट में क्या क्या रीजनिंग होंगी। 253 आपको बेसिकली बताता है कि व्हाट इज जजमेंट, सॉरी 253 कह रहा हूँ, 353 विल बी टॉकिंग अबाउट द जजमेंट, और आप कैसे डिलीवर करेंगे, कितना रीड करेंगे, और या वोल ऑफ द जजमेंट। सो अंडर सेक्शन 353 यू हैव योर प्रोविजंस फॉर जजमेंट। जजमेंट आप ओपन कोर्ट में सुनाएंगे, एक कॉपी देंगे, एसेट्रा एसेट्रा उसमें चीज़ें। और फिर यू विल मेक श्योर कि जो अक्यूज्ड है वो जजमेंट सुनने के लिए आएगा कोर्ट में, और प्रोसिक्यूशन और विटनेसेस जितने भी लोगों को प्रेजेंट रहना है वो प्रेजेंट रहेंगे, एंड कोर्ट शैल इंश्योर देयर प्रेजेंस। अक्यूज्ड को रहना है वहाँ पे, इट इज एसेंशियल फॉर हिम। और फिर 354 बताता है कि जजमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। सो इट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स, रीजंस होंगे, किस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया या किस ऑफेंस के लिए एक्विटल हुआ, अगर सेंटेंस ऑफ डेथ दिया है तो स्पेशल रीजंस बताने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें यू विल रीड 235 विद 353 एंड 354 ऑफ द CRPC। रिमेंबर दैट जब भी आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे आपका आंसर बहुत होलिस्टिक माना जाएगा। whenever you will write that, कोई भी ये समझेगा कि इस व्यक्ति ने पूरी CRPC ढंग से पढ़ी है और उसे अच्छे से आता है कि प्रैक्टिकली कैसे क्या होता है किस स्टेज में। इंटरलिंकिंग के बिना आप देखिए 225 से लेके 235 तक सेशंस ट्रायल है, 237 तक सॉरी, जजमेंट तो यहीं पे आ गया, तो बेसिकली ट्रायल तो यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर 236 में प्रीवियस कन्विक्शन की बात होती है, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। वो हो सकता है या ना हो, इफ इन अ वेरी रेयर सिचुएशन वेयर द अक्यूज्ड इज प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑल्सो, पर मेजोरिटी अदर सेशंस ट्रायल 235 पे ही खत्म हो जाते हैं। तो 10 सेक्शन का आपका सेशंस ट्रायल है अगर आप चैप्टर के हिसाब से चलो, पर इसके अंदर बहुत सारी प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। 313 की भी आ सकती है, 313B की आएंगी ही आएंगी, 313A की आ सकती हैं थ्रू आउट द स्टेजेस। फिर आपका ओरल आर्ग्यूमेंट्स होंगे 314 में, यू विल रीड इट विद दैट। फिर आप जब जजमेंट आएगा 235 में, तो व्हाट विल यू रीड विद इट, उसके साथ कौन सा सेक्शन आपको लिंक करना है, 353 ऑफ द CRPC एंड 354 ऑफ द CRPC।
तो ये सब जब आप लिखते हो तो उससे पता चलता है कि यू हैव अ वेरी कंप्लीट नॉलेज ऑफ द CRPC. सो जजमेंट ऑफ अक्विटल या कन्विक्शन आएगा, तो या तो अक्विट करेगा. आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ द जज शैल गिव अ जजमेंट ऑफ द केस. If the accused is convicted, unless he proceeds in accordance with the provision of 360, that is probations of offender act. अच्छा, एक और काम कर सकता है जज, probations of offender या admonition का benefit दे सकता है under 360 या the CRPC, और एक probation of offender act भी अलग से है, उसके सेक्शन 3 या 4 का benefit दे सकता है. बेसिकली कोर्ट बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, वैसे तो 9-10 क्लॉजेज हैं 360 के ही, और जो आपकी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वो आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 10 से 12 सेक्शन से ज़्यादा की नहीं है, इंक्लूडिंग रिपील्स, और रूल्स उसके थोड़े ज़्यादा है. तो उसमें जो मेन सेक्शन है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में, वो सेक्शन 3 और 4 है, जो कि बेसिकली वो आपको डांट डपट के भी छोड़ सकता है. वो चाहे तो आपको सिर्फ डांट दे कि दोबारा मत करना, एडमोनिशन रिकॉर्ड करे और छोड़ दे. लेट अस सपोज अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर अ वेरी पेटी ऑफेंस. ब्रेड चुराई थी उसने क्योंकि उसको भूख लग रही थी, तो थेफ्ट तो हो गया लॉ में, क्योंकि लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ नेसेसिटीज. थेफ्ट के लिए कन्विक्ट हो गया, बट एक ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल में क्या कहता है कि उसे सेंटेंस मत करो ऐसे केस में, तो ऐसे केस में उसे एडमोनिश करके छोड़ सकता है. या प्रोबेशंस का बेनिफिट दे दे कि आप गुड कंडक्ट मेंटेन करके रखोगे, अच्छा बिहेवियर रखोगे, आई विल नॉट सेंड यू टू जेल. पर उसमें लिमिट है कि ऑफेंस अगर आप 21 साल या उसके ऊपर हो तो 7 साल से कम का होना चाहिए, और अगर आप वुमेन हो या 21 साल से कम के नीचे हो तो ऑफेंस की जो लिमिट होनी चाहिए वो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट द्वारा पनिशेबल होनी चाहिए. ओके, ठीक है. व्हेन यू आर बिलो 21 years of age, or if you are a woman, in either situation the benefit of the provision of section 360 of the CRPC is wider. You will read 360 of the CRPC with what? Probations of Offender Act. कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. सेक्शन 3 और 4 याद रखिए, और सेक्शन 3 और 4 आर बेसिकली, one is talking about admonition, other is talking about probation of good conduct. बस 360 क्या कहता है? When any person is not under 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine only or imprisonment for a term of 7 years or less, मतलब 21 साल से ऊपर, और ऑफेंस जिसके लिए कन्विक्ट किया गया है वो 7 साल या उससे कम है. या अगर कोई पर्सन 21 साल के नीचे है और इज अ वुमन, और वो कोई ऐसे ऑफेंस से नहीं कमिट पनिशेबल किया गया है जो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड कर सकती है, और प्रीवियस कन्विक्शन उसका नहीं है, तो एज, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट्स या सिचुएशन ऑफ ऑफेंस को देखते हुए व्हाट इट कैन डू, इट कैन गिव द बेनिफिट ऑफ द प्रोबेशंस ऑफ ऑफेंडर एक्ट. ध्यान रखिएगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट इज वाइडर इन स्कोप देन सेक्शन 360. इट्स मच वाइडर इन स्कोप देन सेक्शन 360. अब एडमोनिशन कहाँ देता है? एडमोनिशन कहाँ दिया जाता है अंडर सेक्शन 360? एडमोनिशन दिया जाता है सेक्शन 360 के सबसेक्शन 3 में. ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, जस्ट राइट that rather than writing 360, ब्रैकेट्स में लिख दीजिएगा आफ्टर राइटिंग 360 बेनिफिट ऑफ द प्रोबेशन ऑफ गुड फॉर गुड कंडक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अंडर सेक्शन 3 and 4 और बाय एडमोनिशन. ये सारे मेजर्स सेशन जज के पास अवेलेबल हैं. थोड़ा सा आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे ले जाता हूँ, क्योंकि जिससे आपकी नॉलेज होलिस्टिक रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए लॉ तो कभी वॉइड में काम करेगा नहीं, और इंटरलिंकिंग की वजह से क्या होता है, आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहती है फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस एज वेल. तो मान लीजिए कोई ऐसे ऑफेंस से व्यक्ति पनिश किया गया है जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से द्वारा पनिशेबल नहीं है. ऑलराइट, इट इज नॉट पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो प्रोबेशंस ऑफ ऑफेंडर एक्ट है ना, वो 360 से वाइडर इन स्कोप है. वो क्या कर सकती है कि वो पहली बात एज का क्राइटेरिया उतना नहीं लगा रही. सेक्शन 6 जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का है, वो एज का क्राइटेरिया बस इस बात पे लगाता है कि जो ऑफेंडर्स हैं अगर 21 साल से नीचे हैं तो उनको जनरली इम्प्रिजन नहीं करना चाहिए.
रादर ये फाइंडिंग करनी चाहिए कि इज इट डिजायरेबल टू रिलीज देम अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में एडमोनिशन होता है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में, सेक्शन 4 में आपका वो होता है, क्या कहते हैं, जनरली उसको गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है ना, अनलाइक सेक्शन 360 इट इज वाइडर इन स्कोप, वो स्पेशल लॉ है और वो नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर लॉ है। मतलब नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे कभी भी प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, इट हैज अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज इन इट। तो उसका मतलब ये है कि वो सेक्शन 360 को ओवरराइड करता है इन अ जनरल सेंस, और बताता है कि when a person is found guilty of having committed an offense जो डेथ या imprisonment for life से punishable नहीं है, और कोर्ट को लगता है regard having circumstances of the case, nature of the offense, character of the offense और accused के antecedents और बाकी सारी चीज़ों को देख के उसको सज़ा देने की बजाय उसे गुड कंडक्ट पे छोड़ दे, और या तो उसको ये बोल दे कि I will not sentence you at once. I will that you must execute a bond and you should appear when I call upon you to receive the sentence. ऐसा भी कर सकता है कि intermittent period पे आप sentence receive करो, and in the meantime you should keep peace and be of good behavior, अच्छे behavior के रहना। तो ये एक बहुत ही सैल्यूटरी प्रिंसिपल है। लेजिस्लेचर ये नहीं चाहता कि अननेसेसरली छोटे मोटे ऑफेंसेस में आप किसी को पनिश करें। उसमें प्रोबेशन के ऑफेंसेस के अपने अलग नुआंसेस हैं। प्रोबेशन ऑफिसर इसमें अपॉइंट किया जाता है जो एडवाइस करता है, रिपोर्ट बनाता है, देखता है कि इसका गुड कंडक्ट है भी या नहीं, आपको आपका जो ऑफेंस में फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो 360 सीआरपीसी है ना, इट इज अ लिटिल छोटा सा ही, कम से ही नैरोअर इन स्कोप है एज कम्पेयर टू प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। और जनरली आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको प्रोविजंस का बेनिफिट किसी व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे तो 7 साल से कम उम्र में आपको वाइडेस्ट, 7 साल से अगर कम का ऑफेंस है तो आपको वाइडेस्ट पॉसिबल बेनिफिट मिल सकता है 360 का। बट जो सेक्शन 4 है ना ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, वो सीधे आपको इतना बोल देता है कि जो ऑफेंस है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, उससे नहीं पनिशेबल होना चाहिए। एंड अगर वो उससे नहीं पनिशेबल है तो कोर्ट कैन सी कि आपका कैरेक्टर और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि आपको क्या बेनिफिट दिया जा सकता है, क्या आपको बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, टू अपीयर एंड रिसीव द सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन एज पीरियड एज यू मे डिसाइड। और बॉन्ड आपको दिया जा सकता है, वो बॉन्ड कितने पीरियड का होगा, फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 साल। तो 360 और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, दे आर इन पैरी मैटीरिया। सो कभी भी आप वो पढ़िएगा तो ऑलवेज लर्न टू रिलेट दीज सेक्शंस। 360 की अपनी ज़्यादा कोई नुआंस नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन, बट इसको रिलेट करना है अगर आपको किसी से, तो यू विल रिलेट इट विद प्रोविजंस ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सो द नेक्स्ट थिंग इज, इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स, मैं वापस 235 पे आ गया हूँ, unless he proceeds in accordance with the provision of 360, hear the accused on the question of sentence and pass a sentence on him according to law. तो ये जो hearing the accused on the question of sentence है ना, इसी को कहते हैं प्री सेंटेंस हियरिंग। सजा देने से पहले एक हियरिंग का मौका होता है एंड इट सर्व्स अ सोशियोलॉजिकल पर्पस। आप खुद सोचिए कि आप, एक क्लर्क ने चोरी की, he has indulged in corruption, but in facts and circumstances of the case, let us suppose the offense जो उसने करप्शन का किया वो 10 साल से पनिशेबल है, पर फैक्ट्स में पता चला कि उसने करप्शन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी को कैंसर था और वो अपनी बेटी के इलाज के लिए वो पैसा चुराता था, और उसी को उसने सारा जितना भी पैसा उसने यूज़ किया था वो अपनी बेटी के क्योर पे लगा दिया था। तो सोशियोलॉजिकल पर्पस सोचिए सेंटेंसिंग का। वुड यू
कंसिडर सेंटेंसिंग हिम द एब्सोल्यूट मैक्सिमम? क्या ऐसे व्यक्ति को आप 10 साल की पूरी सजा दे सकते हो? क्या आप देना पसंद करोगे ऐसे व्यक्ति को? आई थिंक योर आंसर शुड बी नो. This is why a pre-sentence hearing is conducted, so that the accused person may show cause as to why the sentence imposed, the sentence that is supposed to be imposed upon him by the court should not be excessive and the court should be lenient. और prosecution pre-sentence hearing में क्या दिखा सकता है? ये तो defense दिखाएगा कि आप lenient रहिए. prosecution क्या बोलेगा कि you should be harsh upon him, आप इनको मैक्सिमम दीजिए. हो सकता है वो ऐसा करे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. तो जनरली टेररिज्म के केसेस में प्रोसिक्यूशन फांसी मांगता है, या मर्डर के केसेस में प्रोसिक्यूशन फांसी मांगता है, और डिफेंस कहता है मिनिमम दीजिए, लीनियंट रहिए. अक्यूज्ड के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और वो अलग अलग प्लीज लेते हैं, तो वो प्री सेंटेंस हियरिंग होती है. अच्छा, जो इस पे डिस्प्यूट है वो किस बात का है कि क्या अगर प्री सेंटेंस हियरिंग को आपने नहीं कंडक्ट किया, तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो प्रोसीडिंग्स हैं विशिएट करेंगी या नहीं करेंगे? अगेन 465 का मैटर आ जाता है. एंड 465 कभी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं करती. तो जनरल रूल क्या है? तो फर्स्ट आई विल आंसर यू द जनरल रूल. इसमें जो सबसे पहला केस है जो इस पॉइंट से डायरेक्टली डील करता है वो है संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. जस्टिस भगवती का जजमेंट है. जस्टिस भगवती ने इस केस को मैंडेटरी माना, इस प्रोविजन को मैंडेटरी माना है, और ये बोला है जो प्री सेंटेंस हियरिंग है ना, स्पेशली इन द केसेस विच इन्वॉल्व द सेंटेंस ऑफ डेथ, ऐसे केसेस में हियरिंग मैंडेटरीली कंडक्ट होनी चाहिए. कि क्यों उसको लॉ में मैक्सिमम सजा नहीं देनी चाहिए, मिनिमम देनी चाहिए, या लीनियंट होना चाहिए. ऐसे कारण के लिए वो मटेरियल प्लेस कर सकता है बिफोर द कोर्ट बाय मीन्स ऑफ एफिडेविट. बट इफ द पार्टी डिस्प्यूट्स द वेरासिटी, लेट अस सपोज द ऑपोजिट पार्टी डिस्प्यूट्स द वेरासिटी ऑफ द मटेरियल sought to be produced by the other party, the opportunity should be given to the party concerned who seeks to oppose the evidence which is being presented by the party who is seeking to propose and who is seeking to present an evidence. ऐसे इमेजिन करिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफन टॉक्स इन अ वेरी कंफ्यूजिंग वे. ऐसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई डिफेंस है, डिफेंस बताता है कि मेरी सोशियोलॉजिकल कंडीशन देखिए, ये मेरे फैक्टर सर्कमस्टेंसेस थे, मैं बहुत डिप्रेशन में था, उसकी वजह से मैंने ये हीनियस क्राइम किया, और ये या मुझसे करवाया गया है, या मेरी इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे ग्राउंड ले सकता है. प्रोसिक्यूशन क्या कहता है? प्रोसिक्यूशन सीक्स टू प्रूव कि नहीं, आप इनका कोई भी मटेरियल मत कंसिडर करिए, कि ये जो भी बात कह रहे हैं वो झूठ है, एंड आई हैव द मटेरियल टू प्रूव इट. He is lying about his socio-economical condition. Yeah, socio-economic condition in this case will not be a determinative criteria for sentencing him to the maximum possible allowable by law. ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी पार्टी बता रही है कि या तो आप मैक्सिमम दीजिए, प्रोसिक्यूशन बोलेगा मैक्सिमम दीजिए, लीनियंट मत रहिए, डिफेंस बोलेगा लीनियंट रहिए, मैक्सिमम मत दीजिए, तो ये दोनों पार्टी एक दूसरे के जो एफिडेविट जो वो प्रेजेंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लीनियंसी या इम्पोजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस एज द केस में भी, वो उसको रिबट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, वो जो भी एविडेंस प्रेजेंट करना चाहते हैं उस बात को लेके. सो दिस इज ऑल संता सिंह में बोला गया है. लेकिन संता सिंह में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है वो क्या बोला गया है? दैट इज कि ये कोई, अगर आपने इसको नहीं माना, अगर जज ने सेक्शन 235 को फॉलो नहीं किया जो प्री सेंटेंस हियरिंग को लेके है 235(2) में, तो ऐसे केस में एक्स फेसाई प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी सेंटेंसिंग की. ये संता सिंह में बोला गया, प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी उसकी सेंटेंसिंग की. आपने जो भी सेंटेंस दिया है वो विशिएट हो जाएगा, एंड आपको दोबारा ये प्री सेंटेंस हियरिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी. इसमें बोला कि ये मेयर इरेगुलरिटी नहीं है, इसका जो ऑब्जेक्ट है इट इज अ वेरी सैल्यूटरी ऑब्जेक्ट, और इस पे
सुप्रीम कोर्ट बहुत इलेबोरेट करता है, कहता है कि अगर हमने इसको इरेगुलरिटी ही रिगार्ड किया, अगर चलो हमने इसको इरेगुलरिटी मान लिया जो क्यूरेबल है, इट विल कॉज सीरियस प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड, अगर हमने ये व्यू ले लिया। और ये रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन होगा कि अगर हमने अक्यूज्ड को मौका ही नहीं दिया टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द सेंटेंस विच इज सपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। जैसे अभी मैंने उस क्लर्क का एग्जांपल लिया जिसकी बेटी को मान लीजिए कैंसर था, तो ऐसे केस में आपको अगर ये बात नहीं पता तो आप तो लॉ में मैकेनिकली चलोगे, आप तो सीधे 7 साल या 8 साल की सजा दे दोगे। पर अगर उसने मान लीजिए ये ग्राउंड मटेरियल्स पे दिखा दिए, एफिडेविट बाय द वे ऑफ एफिडेविट और बाय द वे ऑफ अदर एविडेंस ड्यूरिंग द प्री सेंटेंस हियरिंग, तो ऐसे केस में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी सेंटेंस कम करवाने की, पर वो नहीं करवा पाया। तो ऐसे, क्योंकि आपने वो प्री सेंटेंस हियरिंग ही नहीं कंडक्ट की, तो ऐसे केस में इट विल कॉज अ सीरियस फेलियर ऑफ जस्टिस वेयर दिस प्री सेंटेंस हियरिंग इज नॉट कंडक्टेड। द जज must make a genuine effort to elicit from the accused all information which will eventually bear on the question of sentence. All admissible evidence that is before the judge that furnishes a clue to the genesis of the crime and the motivation of the criminal shall be considered by the judge, and it is the bounden duty of the court to cast aside the formalities of the court scenes and approach the question of sentence from broad sociological point of view. The occasion that to apply the provision of subsection 2 of section 235 of the CRPC will arise only after the conviction is recorded. ये sociological point of view से पार्लियामेंट ने सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया है अंदर CRPC, so you have to be very sure कि पार्लियामेंट ने जो इसको इनैक्ट किया है इसका पर्पस फुलफिल हो। योर जॉब, द जजेस जॉब इज टू गिव लाइफ टू द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट, दैट इज योर ड्यूटी एंड यू शुड फुलफिल योर ड्यूटी स्क्रूपलेसली। ठीक है, तो बेसिकली संता सिंह में मेन मैंने पॉइंट आपको बता दिया, तो मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। सबसे पहला केस था संता सिंह ने तो चलो ये कह दिया और उसमें बोला कि मटेरियल में बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट बाय द मीन्स ऑफ एफिडेविट, और अगर उसको कोई पार्टी कन्फ्लिक्ट करती है तो वो अपना मटेरियल भी प्रोड्यूस कर सकती है। और नेक्स्ट इन लाइन कौन सा था जिसमें 235 वेदर इट्स क्योरेबल और इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है फिर क्वेश्चन में आया, वो था दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि वी आर अनेबल टू अग्री विद द जजमेंट इन संता सिंह as laying down that the failure on the part of the court which convicts the accused to hear him on the question of sentence must necessarily entail a remand to the court to afford the accused an opportunity in all cases, कि हर केस में आपको वापस प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी और वापस रिमांड करनी होगी। तो दगड़ू में अलग बात बोली गई। कोर्ट ने बोला कि संता सिंह एक्चुअली ये मीन ही नहीं करता था, इसकी मीनिंग जबरदस्ती मैंडेटरी बना दी गई। कोर्ट ने बोला कि अगर मान लीजिए किसी को कन्विक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली ये मैंडेटरी ड्यूटी है उसके ऊपर कि उसको प्री सेंटेंस हियरिंग कंडक्ट करनी है, पर किसी भी कारण से अगर वो नहीं कर पाया और अक्यूज्ड है वो हायर कोर्ट में आके वेदर एन अपैलेट और रिविजनल कोर्ट में आके ये ग्राउंड उठाता है, तो अपैलेट और रिविजनल कोर्ट खुद ही उसको ये अपॉर्चुनिटी देते कि हाँ ठीक है आप मेरे सामने बोल लीजिए आपको क्या बोलना है, तो ऐसे में रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप अपील पे आ गए तो मैं ही वो अप्रोप्रिएट सेंटेंस पास कर दूंगा आफ्टर कंसिडरिंग योर सिचुएशन। तो हर केस में कोर्ट ने बोला प्रोसीडिंग विशिएट करने की ज़रूरत नहीं है और ना रिमांड बैक करने की ज़रूरत है। अप्रोप्रिएट केस में इट कैन बी सेंड टू द अप्रोप्रिएट केस में जब अक्यूज ने खुद ही रिवीजन और उसके लिए अप्लाई कर लिया है अपील के लिए, तो कोर्ट अपीलेट या रिविजनल कोर्ट उसको खुद ही सुन सकता है डायरेक्टली, और फिर जो भी एफिडेविट उसे सबमिट करने हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस वो अपीलेट कोर्ट के ही सामने कर दे। फिर 1981 में कौन सा केस आया, मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। पहला केस जो आया था संता सिंह का वो 1976 में रिपोर्ट हुआ, फिर दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आया वो 1977 में रिपोर्ट हुआ। फिर जो थर्ड हम केस पे आते हैं वो है मुनियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मुनियप्पन में बोलता है सुप्रीम कोर्ट
that when the trial court has sentenced an accused to death, stating that the accused was asked to speak on the question of sentence, और उसने कुछ भी नहीं कहा, so accused ने कुछ भी नहीं कहा, he did not say anything. ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस इम्पोज करना चाह रहा था और बोला कि हाँ कुछ कहना है सेंटेंस के बारे में, accused कुछ नहीं बोला, चुप रहा, ऐसे में उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन दिस केस ये जो फॉर्मल क्वेश्चन आपने पूछा है, यू हैव नॉट फुलफिल्ड द स्पिरिट ऑफ प्री सेंटेंस हियरिंग. आपको सारी फॉर्मेलिटी ऑफ द कोर्ट सीन, कोर्ट की जो होती है ना फॉर्मेलिटी, सब हटानी है और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कंसिडर करनी है. आप उसका मोटिव जानिए, आप उसके एंटीसीडेंट्स जानिए, आप पूछिए कि आपने ये पर्टिकुलर क्राइम क्यों किया, व्हाई डू यू वांट टू डू, व्हाई हैव यू कमिटेड सच अ पर्टिकुलर क्राइम. लेट अस सपोज एविडेंस में ये एस्टैब्लिश हो रहा है उसने क्राइम किया, पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उसने क्राइम क्यों किया, क्योंकि अक्सर मोटिव अक्यूज्ड को ही पता रहता है. तो उसका मोटिव जान के आप उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चाहें तो कम सेंटेंस दे सकते हैं या आप ज़्यादा दे सकते हैं. इट कैन बिकम आइदर. देखिए मेरे बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्री सेंटेंस हियरिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अक्यूज्ड, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम ही हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर मोटिव बड़ा हीनियस पाया गया. ऑलराइट. फिर सफिशिएंट टाइम, कितना समय चाहिए प्री सेंटेंस हियरिंग को कंडक्ट कराने के लिए, ये डील किया गया था. नेक्स्ट इन लाइन ऑफ अथॉरिटी जो आता है वो है अलाउद्दीन मियां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो 1989 में रिपोर्ट हुआ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए, इसके लिए कोई उसने फिक्स नहीं किया पीरियड. एज अ जनरल रूल कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट शुड अवॉइड रिकॉर्डिंग द सेंटेंस एंड कन्विक्शन ऑन द सेम डेट. एज अ जनरल रूल, एक्सेप्शनल सिचुएशन में कर सकते हैं लेकिन जनरल रूल में अवॉइड करें. सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर जनरल रूल फर्स्ट. एक्सेप्शनल रूल मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन जनरल रूल हमेशा याद रखिए कि एज अ जनरल रूल द जज should avoid recording conviction and sentence on the first date only. What he should do after recording conviction, adjourn the matter to the future date and call upon both prosecution as well as defense to place the relevant material bearing upon the question of sentence before it, and thereafter pronouncement of sentence to be imposed on the offender by the way of affidavits या कोई और भी material हो, they can place before the judge. और क्या क्या रिलेवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, एंटीसीडेंट्स ऑफ द अक्यूज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इम्पैक्ट ऑफ देयर क्राइम ऑन द कम्युनिटी और एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे रिलेवेंट कंसिडरेशन हो सकते हैं. फिर नेक्स्ट इन लाइन क्या आया, फिर आया मालकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. मालकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी यही पोजीशन जो अलाउद्दीन मियां की थी वही रीइटरेट की. ये सफिशिएंट टाइम होना चाहिए. अभी तक कुछ बताया नहीं था उन्होंने कि क्या होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको याद है मैं जब 309 बता रहा था तो मैंने बोला था कि मार्क दीज कि नो एडजर्नमेंट शैल बी गिवन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द प्री सेंटेंस हियरिंग. क्या अक्यूज सिर्फ प्री सेंटेंस हियरिंग के लिए एडजर्नमेंट नहीं क्लेम कर सकता, इसीलिए मैंने आपको बोला था उसको मार्क करिए. क्योंकि देखिए जो CRPC और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. सो आई होप दैट यू हैव मार्क्ड सेक्शन 309 का प्रोवाइजर जो कहता है नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ ओनली इनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम. ग्रांटेड शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं आऊँगा अभी उस पर. फर्स्ट आई नीड टू कंप्लीट द टाइम लाइन. तो दूसरे हाथ पे क्या है, फिर नेक्स्ट इन लाइन आया आफ्टर अलाउद्दीन मियां एंड मालकियत सिंह. नेक्स्ट आया सेवका पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 1991 में रिपोर्ट हुआ. इसमें बोला कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और उनके सामने ग्राउंड ये लिया गया था कि कोई भी टाइम नहीं दिया था ट्रायल कोर्ट ने प्री सेंटेंस हियरिंग में. उन्होंने थोड़ी देर इंक्वायरी कंडक्ट की, कोई सफिशिएंट टाइम नहीं दिया. तो कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग अपील कि डिफेंस काउंसिल जो है कोई भी ऐसा एडिशनल ग्राउंड ऑफ सेंटेंस नहीं दिखा पाया था एपेलेट कोर्ट को जिसके बेसिस पे सेंटेंस कम करवाया जा सकता. क्योंकि कोई भी ऐसा एडिशनल ग्राउंड, कोर्ट ने पूछा कि अच्छा कोई ग्राउंड नहीं दिया गया था, आप बताइए
कि ऐसे कौन से ग्राउंड है आपके पास जिसकी वजह से प्री सेंटेंस हियरिंग कंडक्ट होनी चाहिए थी और सेंटेंस कम इम्पोज होना चाहिए था। तो डिफेंस के पास कोई जवाब नहीं। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कोई प्रेजुडिस नहीं हुई है, तो हेंस द प्रोसीडिंग नीड नॉट बी सेट असाइड। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो टेस्ट है 465 में, it is whether the prejudice to the accused has happened or not, or whether it has resulted in miscarriage of justice. But merely because I am saying that, आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में आप लिखेंगे it is a mandatory provision, generally ex facie vitiate कर सकता है ऑर्डर, पर उसके बाद आप बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे। इन अ गिवन सिचुएशन अगर ओमिशन हो गया तो अपीलेट कोर्ट खुद भी मौका दे सकता है प्ली रिकॉर्ड करने का और एडिशनल ग्राउंड्स लेने का। लेकिन अगर वो कोई भी ग्राउंड नहीं बता पाता है और ये दिख जाता है कि कोई प्रेजुडिस नहीं हुई है, तो नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 इज नॉट ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर। फिर नेक्स्ट इन लाइन कौन सा केस आता है? 1992 में आता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्लैरिफाई करता है कि 309 of the CRPC prescribed that no power of adjournment of sentence hearings can be made where the accused proposes to show materials for the sentence where the accused proposes to show grounds against the sentence which is proposed to be imposed upon him. So 309 में आप generally you cannot grant an adjournment on the asking of the accused on this ground. पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह में इसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए बोलता है कि इवन दो कोर्ट क्या कहते हैं अक्यूज्ड को पूछने पे वो ग्रांट नहीं कर सकता है ऐसा एडजर्नमेंट, बट थोड़ा टाइम उसको प्रोवाइड करना चाहिए जहां पे अक्यूज्ड जो है ऐसा रेलेवेंट मटेरियल प्रूफ प्रोड्यूस करना चाहता है कोर्ट के सामने जो कैपिटल ऑफेंस को, किसी कैपिटल ऑफेंस पे जो पनिशमेंट उस पर इम्पोज होने वाला है, लेट अस सपोज मैक्सिमम इम्पोज होने वाला है, तो उसको कम करवा पाए। तो ऐसे में कोर्ट में बोल दिया कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह में कि while the section 309 of the CRPC prescribe no power for adjournment of sentence hearing, these should be provided where the accused sought to produce material in capital cases। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यार 309 of the CRPC में तो एक्सप्रेसली लिखा है कि adjournment दे नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप दे सकते हैं इन द कैपिटल केस, तो हम बात माने तो हम किसकी माने? वैसे मैं अभी टाइमलाइन में आगे भी बहुत सारे केसेस हैं, आई हैव टू डील विद ऑल ऑफ देम, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए अक्यूज्ड मांग नहीं सकता। लेजिस्लेचर ने ग्रांटेड शब्द का यूज किया है 309 पे, पर वो कोर्ट की पावर टू ग्रांट एडजर्नमेंट को नहीं करता है कंट्रोल। कोर्ट अपनी पावर से हो सकता है एडजर्नमेंट दे दे, अक्यूज की डिमांड पे ना दे। तो कोर्ट ने बोला है कि वो जो 309 का प्रोविजन है, स्पेशली इन द केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस जहां पे बहुत सीवियर सेंटेंस इंपोज हो सकता है, तो जनरली उस केस में अगर वो एडजर्नमेंट देना चाहता है तो हालांकि अक्यूज की डिमांड पे नहीं देगा, लेकिन अगर उसे खुद अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे जज को लगता है कि मुझे एडजर्नमेंट देना चाहिए, तो ही कैन डू सो। So the legislature is not controlling the power of the court to grant an adjournment, he is controlling the power of the accused to ask for adjournment. The power of the court to grant adjournment is not regulated. The power of the accused to ask for adjournment is regulated. ग्रांट का मतलब है, जो ग्रांट शब्द का यूज किया गया है 309 में, उसका मतलब है कि एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लगी है। ऑलराइट, आई ग्रांट यू समथिंग बिकॉज यू हैव आस्क्ड मी फॉर इट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 309 के वर्ड्स पे रिस्ट्रेंट किया है, वो सिर्फ इतना बोला है कि ऑन द आस्किंग ऑफ द अक्यूज्ड, ऑन द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड यू कैन नॉट ग्रांट इट, बट बाय योरसेल्फ अगर आपको रीजनेबल लगता है तो यू कैन ग्रांट इट, एंड जनरली यू शुड ग्रांट इट व्हेन द केस इन्वॉल्व्स अ हीनियस ऑफेंस। ऑलराइट, तो वो ग्रांट ऐसे इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सो कीप दैट इन माइंड।
और ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट इन लाइन आता है जयकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1999 में रिपोर्ट हुआ। बोला कि द ट्रायल कोर्ट हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंस टू द ट्रायल कोर्ट हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द डिफेंस टू प्रोड्यूस मटेरियल्स विच दे चोज नॉट टू डू सो। मतलब डिफेंस को अपॉर्चुनिटी दी कि आप मटेरियल प्रोड्यूस करो और एडजर्न कर दिया, जो उन्होंने फिर कोई मटेरियल नहीं प्रोड्यूस किया और बस सिर्फ कुछ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस रेज किए जो कोर्ट ने कंसिडर किए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ओपाइन किया कि इन सच सर्कमस्टेंसेस इट वाज नॉट अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस दैट जज डिड नॉट एडजर्न द हियरिंग। तो इस केस में बेसिकली वो बोलता है, क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, कि मेरली बिकॉज इट डिडंट ग्रांट यू सफिशिएंट टाइम फॉर हियरिंग, तो इसी की बात पे ही एविडेंस जो है, जो प्री सेंटेंस हियरिंग का जो प्रोविजन है वो वायलेट नहीं हो जाता, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मटेरियल था ही नहीं जो आप प्रूव कर पाते। यू नेवर हैड एनी मटेरियल विच यू कुड हैव शोन टू द कोर्ट। वही कह रहा है कि आपके पास कोई मटेरियल था ही नहीं जो आप प्रोड्यूस कर पाते। तो अब ये क्या टेक्निकल ग्राउंड क्यों उठा रहे हैं कि प्री सेंटेंस हियरिंग प्रॉपरली नहीं हुई क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए एडजर्न नहीं किया गया था। तो कोर्ट ने उसको टेक्निकल पॉइंट पाया और कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसका ऑर्डर और ये बोला कि मेरे लिए इट वाज नॉट अ केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। पार्लियामेंट ने 309 में क्यों बैन किया है कि अक्यूज्ड के आस्क करना फॉर एडजर्नमेंट? सिंपली इस रीजन से कि वो नहीं चाहती कि एक मिनी ट्रायल सेंटेंस पे भी हो जाए। पार्लियामेंट डज नॉट वांट टू हैव अ मिनी ट्रायल ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। वो बस चाहती है कि जज को कुछ सोशियोलॉजिकल ग्राउंड्स कंसिडर करने चाहिए एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा वो कुछ ना कंसिडर करे। All it wants is for the judge to consider some sociological grounds and consider the position of the accused vis-a-vis in accordance with the circumstances that is appearing in the facts of the given case and then sentence him appropriately for a crime. बस इतना चाहती है पार्लियामेंट। तो वो ये नहीं चाहती कि अब एक तो कन्विक्शन पे एक पूरी हियरिंग कंडक्ट हुई, अब सेंटेंस पे एक पूरा मिनी ट्रायल शुरू हो, ये नहीं चाहती वो पूरा प्रोविजन। तभी उसमें 309 में कहा है प्रोवाइडेड दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ ओनली ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन। तभी एक जनरल रिस्ट्रिक्शन लगाई है पार्लियामेंट में। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे कि आप एडजर्नमेंट दे सकते हैं जहां पे जज को रीजनेबल लगे, तो उस पे बात करने से पहले आप लेजिस्लेचर के बैन की जरूर बात करेंगे। ये सब जनरल रूल्स हैं। यूल फर्स्ट टॉक अबाउट द बैन ऑफ द लेजिस्लेचर, यूल स्टार्ट ऑलवेज विद द लेजिस्लेचर्स वर्ड्स। उसी का तो इंटरप्रिटेशन है। वो अलग बात है कि जुडिशरी जो कहती है वही लॉ होता है, बट यू हैव टू गिव इफेक्ट टू द वर्ड्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड टॉक अबाउट व्हाट इट हैज सेड एंड देन टॉक अबाउट हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेटेड इट। क्योंकि जो इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने वही लॉ है, because it is the most competent authority in that what is the interpretation of law। तो इसीलिए उसका जजमेंट सबको बाइंड करता है। तो आपको शुरुआत करनी है लेजिस्लेचर के वर्ड से, देन यू गो टू द सेक्शन। तो नेक्स्ट इन लाइन केस क्या आता है? अंशद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका आता है। इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि द ट्रायल जज हैज डेल्ट विद सेंटेंसिंग प्री सेंटेंस हियरिंग क्रिप्टिकली, मतलब बहुत पहली नुमा फॉर्म में बोली है इन वन पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में ही उन्होंने पूरा मटेरियल कंसिडर कर डाला। कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या कंसिडर किया क्या नहीं किया। बड़ा ही कंफ्यूजन है, वेग सा पैराग्राफ ड्राफ्ट किया था उन्होंने। तो उसको कोर्ट ने माना कि इट हैज डिफीटेड द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 प्री सेंटेंस हियरिंग का, और जज की लैक ऑफ सेंसिटिविटी एक्सपोज हो गई थी इस केस में कि आपने सेंटेंस को इतना मैकेनिकल फॉर्म में आप प्रोसीड किए कि लग रहा था कि आप एकदम किसी ह्यूमन का ट्रायल नहीं कर रहे, एज इफ यू आर ट्राइंग एन ऑब्जेक्ट, एज इफ यू आर एन ऑटोमेटॉन। तो अ जज इज ऑल्सो अ ह्यूमन इवन दो ही एक्सरसाइजेज डिवाइन फंक्शंस। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखा करिए कि यू आर ट्राइंग अ ह्यूमन एंड अ ह्यूमन हैज वेरी peculiar and very important facts and circumstances
which may have made him a criminal. देखिए criminal हमेशा is a product of circumstance. Nobody is born a criminal. कभी कोई criminal born नहीं होता, वो circumstances की वजह से raise होता है. In this case, the judge acted very mechanically. That was frowned upon by the Supreme Court. इस केस में अंशद में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं बोला था कि प्री सेंटेंसिंग हियरिंग का फॉलोइंग नहीं हुआ, उसने सेंटेंस को कम्यूट भी कर दिया था, कम कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि लोअर कोर्ट्स ने एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस ढंग से कंसिडर किए ही नहीं थे. फिर नेक्स्ट इन पॉइंट क्या आता है, बी.ए. उमेश वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका. ये 2017 में रिपोर्ट हुआ था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अ रिव्यू पिटीशन कैन नॉट बी अलाउड मेरली बिकॉज नो सेपरेट डेट वाज गिवन फॉर हियरिंग ऑन द सेंटेंस. इसी बात पे रिव्यू पिटीशन नहीं अलाउ हो सकता. रिव्यू पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सीआरपीसी में रिव्यू नहीं अलाउड है. सीआरपीसी में रिव्यू इज रादर बैंड अंडर सेक्शन 362 ऑफ द सीआरपीसी. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रिव्यू क्यों नहीं हो सकता सीआरपीसी में. यू ऑब्वियसली रेफर टू सेक्शन 362 जो बैन करता है रिव्यू को, except for the case of clerical and arithmetical errors. तो सुप्रीम कोर्ट ने बी.ए. उमेश में बोला कि दिस कोर्ट हैज हेल्ड द सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी does not mandate separate date for hearing or the sentence. Rather, it is dependent on the fact of circumstances of the case. For instance, if the parties insist to be heard on separate dates, तो फैक्ट सर्कमस्टेंसेस से डिटरमाइन होगा कि कोर्ट को अलग अलग डेट देनी चाहिए या नहीं, या सेपरेट डेट्स देनी चाहिए या नहीं, या एडजर्न करना चाहिए या नहीं. ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस का सवाल है. इसका कोई कट और ड्राइड आंसर नहीं है. तभी सुप्रीम कोर्ट भी कोई कट एंड ड्राइड आंसर नहीं दे रहा. इनफैक्ट द मोस्ट कट एंड ड्राइड आंसर दैट इज सुप्रीम कोर्ट कुड गिव इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि कब एडजर्नमेंट कोर्ट कंसीडर करेगा, वो तब है जब उसको लगे कि मटेरियल दिखाया जा सकता है, मटेरियल इज ऑफ सच नेचर जो हो सकता है कि बेरिंग हो ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस. और दूसरा ये भी देखेगा कि क्या रिक्विजिट टाइम अलाउ करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सच मटेरियल एंड एविडेंस. ये राउंड कंसिडर करेगा. थर्ड पॉइंट क्या कंसिडर करेगा, अगर पार्टीज प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड दोनों एक दूसरे का वर्जन रिबट करना चाहती हैं, एक मैक्सिमम देना चाहता है, एक लीनियंट सेंटेंस चाहता है, तो दोनों एक दूसरे का वर्जन रिबट करने के लिए भी मटेरियल दोनों के पास है. तो ऐसे केस में भी यू शुड ग्रांट एन एडजर्नमेंट, जैसे आप प्रॉपरली देख सकें कि क्या एग्रेवेटिंग मटेरियल्स हैं और क्या मिटिगेटिंग materials हैं. So you have to consider all of that. What are the aggravating circumstances, what are the mitigating circumstances, which parties rebutting which kind of evidence, which parties materials are stronger in nature, ये सारा consider होगा. उसके बाद आप adjournment देंगे. कोई इस पर मिनी ट्रायल नहीं करना है, ये आपको immediately दिख जाएगा by the fact or circumstances of the case. आप बैठे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटरमाइन करने में, if you are a judge, आपको डिटरमाइन करने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा कि किस नेचर का मटेरियल है. मान लिया डिफेंस कहता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वो देख लेंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू विल कंसिडर मिटिगेशन ऑफ सेंटेंस. आप सेंटेंस बहुत लीनियंट इम्पोज करेंगे ऐसे केस में. तो ऐसे में जो जज है वो कह सकता है कि ओके आई विल अलाउ यू एन एडजर्नमेंट सो दैट यू कैन प्रोड्यूस अ मटेरियल. लेकिन मान लीजिए अगर किसी केस में जज ने नहीं अलाउ किया एडजर्नमेंट, तो बाय इटसेल्फ वो इप्सो फैक्टो विशिएशन नहीं हो जाएगा प्रोसीडिंग का. ये देखा जाएगा फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस थे या नहीं. और अगर एपेलेट कोर्ट पे ये ग्राउंड लेते हैं तो एपेलेट कोर्ट खुद ही कह देगा कि आप मेरे ही सामने मटेरियल प्रेजेंट कर लीजिए, मैं वापस केस क्यों रिमांड करूं. अब मेरे सामने मटेरियल प्रेजेंट करिए, आई विल हियर यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस. ज़्यादा अच्छा है. और पता चला जब वकील साहब कुछ बोल ही नहीं पाए या डिफेंस कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो एपेलेट कोर्ट भी बोल देगा. तो फिर आप किस बात पे कैविल कर रहे थे कि आपको मौका नहीं दिया गया प्री सेंटेंस हियरिंग में. So that is an absurd ground. ठीक है, तो अभी ये सारा जो केस लॉ में डील करता आ रहा हूँ, ये सिर्फ आपको रीजनिंग बताने के लिए. All the purpose of these provisions that I am dealing is for the purpose of reasoning, to provide you with reasoning. नेक्स्ट इन लाइन जो आता है यह मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली. अच्छा, मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली किस केस, इसको निर्भया रेप केस भी कहते हैं. ठीक है, 2017 में रिपोर्ट हुआ था ये. दिस
इसमें सुप्रीम कोर्ट होल्ड करता है कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 235(2) ऑफ द सीआरपीसी अगर नहीं मेट हैं तो appellate court can either remit the case back to the trial court or adjourn the matter before the appellate forum for the hearing of sentence after giving opportunity to adduce evidence. On the other hand, the court also noted that deficiency in non-compliance of section 235(2) of the CRPC can be cured by providing the opportunity at the appellate stage itself so as to curtail the delay in the proceedings. ठीक है, तो वही वाली केस है कि हर केस में आपको डिले करवाने की ज़रूरत नहीं, अपीलेट कोर्ट खुद ही सुन ले। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि हमें सुनना ठीक नहीं रहेगा, रिमांड कर देते हैं केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट, देन इट कैन ऑलवेज डू दैट। लेकिन अगर पाया कि उनके पास कोई एफिडेविट या मटीरियल ही नहीं है तो वहाँ पे प्री हियरिंग सेंटेंस का कोई वही नहीं उठता, कोई देयर इज नो पर्पस ऑफ सच प्री सेंटेंस हियरिंग। एक चीज आपको और बता दो, जब कोई जज सिर्फ मिनिमम ही सेंटेंस देना चाहता है, जो मिनिमम प्रोवाइडेड बाय लॉ है, जैसे मर्डर में कौन सा मिनिमम है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज द मिनिमम सेंटेंस दैट कैन बी इम्पोज्ड, तो अगर वो प्री सेंटेंस हियरिंग करता ही नहीं है तो दैट इज नॉट अ फेटल इरेगुलरिटी। वो इनफैक्ट इरेगुलरिटी भी कंसिडर नहीं की जाएगी, वो कहेगा कि उसमें प्री सेंटेंस हियरिंग करके ही क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी मिनिमम आपको इम्पोज कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेयर द जज इम्पोजेस मिनिमम सेंटेंस, उस केस में आपको वो करने की जरूरत नहीं, प्री सेंटेंस हियरिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ पे आप मिनिमम से ज्यादा या मैक्सिमम देने का सोच रहे हो तो वहाँ पे यू शुड कंसिडर प्री सेंटेंस हियरिंग, और वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के अकॉर्डिंग चलेगी कि कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा, और क्या एफिडेविट या मटेरियल प्रोसिक्यूशन और डिफेंस प्रेजेंट करता है ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस, ये सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो मिनिमम सेंटेंस वाली मैंने बात कही कि व्हेन द जज प्रपोजेस टू इम्पोज अ मिनिमम सेंटेंस, then the question of providing an opportunity under section 235(2) would not arise। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तरलोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 और रामदेव चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2001 में रिपोर्ट हुआ था। ये जजमेंट 2001 में रिपोर्ट हुआ था। दिस पोजीशन ऑफ लॉ वाज अगेन रीइटरेटेड। ठीक है, सो रामदेव चौहान भी मैंने आपको दे दिया है और सारे केस प्रोवाइड किया है। अब एक प्री सेंटेंस हियरिंग पे गाइडलाइंस हैं। ये 12 अप्रैल 2019 का जजमेंट डिसाइड हुआ अक्यूज्ड एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ऑल राइट, हाँ यही नाम है, अक्यूज्ड एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो गाइडलाइंस ऑफ प्री सेंटेंस हियरिंग क्या है? The term hearing occurring under section 235 subsection 2 requires the accused and the prosecution at their option to be given a meaningful opportunity। एक उनको मौका देना चाहिए एक मीनिंगफुल हियरिंग का, वही वर्ड मतलब है हियरिंग का। कोई अनड्यूली रीजनेबल एडजमेंट देने की जरूरत नहीं, सफिशिएंट टाइम बस देना है। फिर सेकेंड गाइडलाइन इस केस में क्या थी? Meaningful hearing under 235 subsection 2 of CRPC in usual course is not conditional upon the time or number of days granted for the same. It is measured qualitatively, not quantitatively। क्वालिटी देखी जाएगी, क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी। मान लीजिए आपके पास मटेरियल ही नहीं है, आप 1 महीने का एडजमेंट मांग रहे हो, तो फिर वो बोलेगा क्यों, जब आपके पास कोई मटेरियल नहीं। तो प्री सेंटेंस हियरिंग क्यों करवाएं जब आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस दिखा ही नहीं सकते। ऑलराइट, तो क्वालिटी देखी जाएगी, और क्वालिटी कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम देना चाहिए कितना नहीं, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है। फिर ट्रायल कोर्ट नीड नॉट कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ 235(2) of the CRPC where he proposes to impose the minimum sentence provided by law। जहाँ वो मिनिमम देना चाह रहा है वहाँ you do not need to comply with this provision 235(2) का। और जहाँ पे आप मिनिमम दे रहे हो, एब्सोल्यूट मिनिमम दे रहे हो, उससे नीचे दे ही नहीं सकते, तो ऐसे केस में you do not need to comply with 235 subsection 2। But generally in all the other cases the trial court needs to comply with the mandate of 232
235 subsection 2 with the best efforts and after considering the material brought on by the both accused and the prosecution. फिर फोर्थ क्या गाइडलाइन है? नॉन कंप्लायंस कैन बी रेक्टिफाइड एट द appellate स्टेज एज वेल बाय प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी. अगर ये अपॉर्चुनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर प्री सेंटेंस हियरिंग, द appellate court needs to balance the various considerations and either afford an opportunity before itself or remand back to the trial court in appropriate case for the fresh consideration. या तो appellate court खुद ही कंसिडर कर ले वो सारे मटेरियल्स जो हियरिंग कंडक्ट करवाता है. इनफैक्ट ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे डिले ज़्यादा लंबा नहीं होगा. या अगर appellate court को लगता है कि नहीं इसमें बहुत क्लिंचिंग तरह के द मटेरियल दैट ought to be produced is of a very deep quality, it's of a very clinching quality, then in that situation what it can do is remand the case back to the trial court. तो ये भी option उसके पास available है. It can remand the case to the trial court for conducting the pre-sentence hearing, or it can itself hear on the matters of sentence. ठीक है, वही खुद ही पूरी जो pre-sentence hearing में जो भी hearing होनी थी वो खुद ही conduct कर सकता है by considering the affidavit and the materials whatever it might be produced by the either of the parties. However, 6th point है, accused needs to satisfy the appellate courts by pleading the grounds as to existence of mitigating circumstances for further consideration. Mitigating circumstances plead करने होंगे. Merely taking the plea that pre-sentence hearing was not conducted is not sufficient in itself. You have to show the mitigating circumstances. 7th point क्या है? Being aware of the harsh reality of protracted trials or jail appeals, appellate court in appropriate cases may take recourse to independent inquiries on relevant facts ordered by the court itself. तो appellate court चाहे तो independent inquiry भी कर सकता है. और 8वां और लास्ट पॉइंट क्या है? If no such grounds are brought by the accused before the appellate courts, then it is not obligated to take recourse under section 235(2) of the CRPC. मतलब प्री सेंटेंस हियरिंग की फिर ऐसे केसेस में कोई जरूरत ही नहीं है. ये जितने भी मैंने आपको सारे केस बताए ना, इनका पर्पस सिर्फ यही है. दे आर ट्राइंग टू बैलेंस टू इंपॉर्टेंट राइट्स, राइट टू द फेयर ट्रायल, राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड राइट टू अ स्पीडी ट्रायल. एक साइड पे आपके राइट्स ऑफ द सोसाइटी हैं जो प्रोसिक्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, टू हैव द क्राइम एड्रेस्ड, और दूसरी साइड पे आपके राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड हैं टू हैव हिज सर्कमस्टेंसेज बीइंग कंसिडर्ड बाय द कोर्ट्स, और वैसा ही सेंटेंस इम्पोज होना चाहिए दैट इज फिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस. उसको एक्सेसिव सेंटेंस नहीं देना चाहिए. So he should have an opportunity to show cause against the sentence that is proposed to be imposed upon him. All right. So I think as far as this is concerned ये हो गया है. अब सेशंस ट्रायल प्राइमरली खत्म हो चुका है. प्राइमरली अब इसके छोटे मोटे बेयर एक्ट सेक्शन बचे हैं कि प्रीवियस कन्विक्शन होगा तो ऐसे केस में क्या करना होगा. आई थिंक वी हैव एनफ टाइम टू रीड दिस सेक्शन. In a case where previous conviction is charged under subsection 7 of 211, accused does not admit that he has been previously convicted, the judge may, after he has convicted the said accused under section 229 or 235, take evidence in respect of the alleged previous conviction. जब वो convict कर चुका होगा ना, जो जिस केस को ट्राई कर रहा था, उसके बाद वो एविडेंस लेगा प्रीवियस कन्विक्शन का, उससे पहले नहीं. ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट ये कि जज कहीं ट्रायल पे ही प्रेजुडिस ना हो जाए उसका प्रीवियस कन्विक्शन देख के. प्रोवाइडेड दैट नो चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज, नॉर शैल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयरटो, नॉर शैल प्रीवियस कन्विक्शन बी रेफर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन और इन एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय इट अनलेस एंड अनटिल द अक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड. जब तक अक्यूज्ड कन्विक्ट ना हो जाए तब तक ना चार्ज ऐसा पढ़ा जाएगा प्रीवियस कन्विक्शन का, नॉर अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड गिल्टी देयरटो, nor the previous conviction be referred by the prosecution in any of the charge. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, how will you prove previous conviction?
प्रीवियस कन्विक्शन को भी प्रूव करने का तरीका होना चाहिए. तो क्या बाय मेयरली सेइंग यू कैन प्रूव प्रीवियस कन्विक्शन? आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर सेशन ये प्रीवियस कन्विक्शन कैसे प्रूव करते हैं. आई टेल यू अगेन. You prove previous conviction or acquittal by the virtue of section 298 of the CRPC, जो कहता है कि या तो you have an extract certified by the hand of the officer, under the hand of the officer having custody of the records of the court in which the conviction or acquittal was had. और अगर conviction ही prove करना है बस, देखिए clause A जो 298A का है, 290 सेक्शन 298 का है, उसका क्लॉज ए जो है वो तो कन्विक्शन और अक्विटल दोनों पे अप्लाई करता है, पर जो क्लॉज बी है ना वो सिर्फ कन्विक्शन पे अप्लाई करता है. तो उसमें दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है आपको कन्विक्शन को प्रूव करने के लिए? वो है अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल इन विच द पनिशमेंट और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट वॉज अंडरगॉन, और बाय प्रोडक्शन ऑफ द वारंट ऑफ कमिटमेंट अंडर विच द पनिशमेंट वॉज सफर्ड. तो या तो बाय वारंट ऑफ कमिटमेंट दिखा दें. वारंट ऑफ कमिटमेंट कौन एग्जीक्यूट करता है? द वारंट ऑफ कमिटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय द जज कंसर्न, कि इसको जेलर पे लॉज कर दो. या दूसरा तरीका है इन क्लॉज बी, सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल इन विच द बाय विच द अंडर हुज जेल द पनिशमेंट वॉज हैड. तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल का भी आप सर्टिफिकेट ले लो, या वारंट ऑफ कमिटमेंट ड्यू टू विच पनिशमेंट वॉज सफर्ड वो आप दिखा दो. इन आइदर केस दैट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव कन्विक्शन. और साथ में इनके साथ क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन विद द पर्सन सो कन्विक्टेड और अक्विटेड. देखिए कन्विक्शन में तो आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है उसके लिए आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं. अक्विटल में भी ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑट्रोफाइज अक्विट और ऑट्रोफाइज कन्विक्ट की डॉक्ट्रिन में भी जो सेक्शन 300 में है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है. ऑल राइट. एक आपको ट्रिविया के लिए बता देता हूं कि वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, कौन से सेक्शन में? तो 425 ऑफ द CRPC में होता है. ऑल राइट. ऐसे ही मैं बस आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज कंप्लीट. और नाउ हम लोग के पास बेयर एक्ट के प्रोविजन ज़्यादा बचे हैं. अब एक नुआंस और डील होना है, वो है सेक्शन 319 ऑफ द CRPC का. तो सेक्शन 319 की सिचुएशन आ सकती है या तो नहीं आ सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. 319 को इसलिए मैंने सोचा कि आराम से इसको डील करेंगे, पहले सेशंस ट्रायल खत्म कर दें, क्योंकि अभी ट्रायल ही चल रहा है. तो यू विल अंडरस्टैंड 319 इन इट्स फुल विगर कि वो काम कैसे करता है, उसके क्या नुआंसेस हैं. अभी आज के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. योर सेशंस ट्रायल इज सब्सटेंशियली डन. 319 की स्टेज ऑप्शनल होती है, मैंडेटरी नहीं होती कि वो हर जगह आती है, इसीलिए मैंने उसको साथ में इंक्लूड नहीं किया. पर 309 और प्री सेंटेंस हियरिंग तो आते ही आते हैं, तो दैट इज़ वाई आई हैड टू इंक्लूड देम. ऑल राइट. फिर मैंने आपको ये बता दिया कि जजमेंट को आप कौन से सेक्शन के साथ पढ़ेंगे, प्रीवियस कन्विक्शन को आप कौन से सेक्शन के साथ पढ़ेंगे, प्रीवियस कन्विक्शन के सेक्शन को, वारंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ सेंटेंस को आप 425 से पढ़ेंगे, एसेट्रा एसेट्रा. तो ये इंटरलिंकिंग अपने दिमाग में फ्रेश रखिएगा, बिकॉज इट विल एज्यूम अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है. सो वी आर डन फॉर द टुडे, एंड स्टडी नोट्स आर ऑन द वेबसाइट.